वाइस प्रेसिडेंट योगा फिजिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, मेंबर्स एग्जीक्यूटिव मेंबर ऑफ किस्टेज योगा ग्रुप। आज का गेस्ट ऑफ ऑनर है हमारे साथ ভালো লাগে না, কাকিমা ঢোকে না, এর ঢোকে না। एमिनेंट योगा पर्सनालिटी एंड प्रेसिडेंट योगा एकेडमी मिसेस जयश्री सरकार। হলো তোমার 2 नंबर पे है एमिनेंट योगा पर्सनालिटी एनआईएस योगा एंड फिजियोथेरेपी मिस्टर आलोक कुमार दास। चुप करो। सिस्टम में 3 नंबर पे है एमिनेंट योगा पर्सनालिटी एंड योगा कोच मिस्टर वासुदेव भट्टाचार्य। हम किस्टेज योगा ग्रुप और योगा एकेडमी और वाईएसएस की तरफ से हर आज के इस प्रोग्राम में जितने भी सारे पार्टिसिपेंट्स हैं जिन्होंने हिस्सा लिया सभी को आमंत्रित जाना करता हूं इस प्रोग्राम में। आज हम चौथा दिन में आ चुके हैं। आज का टॉपिक होगा योगा फॉर हेल्थ। मैं पहले आमंत्रित करना चाहती हूं हमारे एमिनेंट योगा पर्सनालिटी एंड प्रेसिडेंट योगा एकेडमी के प्रेसिडेंट मिसेस जयश्री सरकार जी को आमंत्रित करता हूँ वहाँ आके हमारे बारे में, हमारे यहाँ पे जो प्रोग्राम के बारे में कुछ बोले। जयश्री मैडम प्लीज आप कुछ बोलिए, आज के इस प्रोग्राम के बारे में, वर्कशॉप के बारे में कुछ बोलिए। जयश्री सरकार मैडम। हेलो বিনয়দা। হ্যাঁ হ্যালো, হ্যাঁ বলুন, শুনতে পাচ্ছি। জয়শ্রী সরকার একটু পরে আসছেন, আপনি বাসুদেব ভট্টাচার্যকে ডাকুন আগে। अच्छा ठीक है। हम फिर मैडम थोड़ा लेट से आ रहे हैं, अभी ज्वाइन नहीं किया। हम हमारे एमिनेंट योगा पर्सनालिटी एनआईएस योगा कोच एंड फिजियोथेरापिस्ट मिस्टर आलोक कुमार दास महाशय जी को आमंत्रित करता हूं आके हमारे इस प्रोग्राम के बारे में कुछ सबको बताएं। प्लीज आलोक दा सुन। मिस्टर आलोक कुमार दास, प्लीज सर आप आइए, कुछ बताइए हमें, यहाँ पे जो प्रोग्राम कर रहे हैं सबको कुछ बताइए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। आपका ग्रुप সকল উপস্থিত ভদ্রমহোদয়কে আমার শুভেচ্ছা এবং ভালোবাসা এবং প্রণাম জানাই। আজকে যে সন্ধ্যায় কিডফিট গ্রুপে যোগ ভাই এত সুন্দর একটা অনুষ্ঠান করেছে, এই ওনাকে বাহবা দিতেই হবে। অনেকদিন যাবৎ কিছু কথা বলি যে এরকম আমরা ভাবনা চিন্তা করেছিলাম যোগ ইউনিভার্স বলে একটা সংস্থায়, সেখানে পরম শ্রদ্ধেয় অপ্রকাশ চক্রবর্তী মহাশয় এরকম শুরু করেছিলেন। যাই হোক কোনো কারণে সেটা বন্ধ হয়ে যায়, ওনার এখন শরীর অসুস্থ, আবার আমরা পরে তুলে চেষ্টা করব। এই যে চিন্তাধারাগুলো অমল ভাইয়ের মধ্যে যে এসেছে, আমি ওনাকে সাধুবাদ জানাই। অমল ভাই অনেক দিনের যোগবিদ। হ্যাঁ, আমি ওকে ছোট থেকে জানি যে কম্পিউটার ছিল, তারপর উনি অনেক বইয়ের লেখক। এই যে উনি যে যোগকে প্রসার করছে তার জন্য সাধুবাদ জানাই। সবার আগে প্রণাম জানাই যোগের লর্ড অফ যোগা শিবাকে, অর্থাৎ দেবাদিদেব মহাদেব শিবই হচ্ছে আমাদের যোগের সব। প্রায় 5000 বছর আগেকার কথা, ভারতবর্ষ, চীন, মিশর, গ্রিক যোগের প্রাদুর্ভাব দেখা গেছে এবং সিন্ধু সভ্যতার সময় আরও প্রকট হয়েছে। যেসব শিলালিপিগুলোতে যোগের ছবি দেখা গেছে সেগুলো স্বয়ং মহাদেবের ধ্যান অবস্থায়। তাহলে সে থেকেই প্রমাণ পাওয়া যায়, অনেক রিসার্চ করে পণ্ডিতগণ প্রমাণ করেছে যে ভারতবর্ষই হচ্ছে যোগের পীঠস্থান। যোগের যদি ফাদার অফ যোগা হচ্ছে আপনার মহর্ষি পাতঞ্জলি, লর্ড অফ যোগা হচ্ছে
শিবা। এই যোগকে প্রাচীনকাল থেকে অনেক রিসার্চ হয়েছে। যোগ শব্দটা এসেছে প্রাচীন গ্রন্থ ঋগ্বেদ থেকে, সেখানে যোগ শব্দটা আছে, সংস্কৃত ওয়ার্ড জুস শব্দ থেকে এসেছে। এই জুস শব্দটা হচ্ছে সংযুক্তকরণ, যোগ করা। তাহলে প্রথমেই আমরা যদি বেদ থেকে ধরি, যে যোগের প্রথম কথা হচ্ছে সংযুক্ত করা অর্থাৎ যুক্ত করা। পরে সব পণ্ডিতগণ এলেন, তাদের মতে পরমাত্মার সহিত আত্মার সহিত জীব আত্মার মিলনকে যোগ বলে। আবার পরবর্তীকালে আরো রিসার্চ হয়ে এলো, সেটা কি হলো, যে মনের সাথে দেহের মিলন যোগ, সেটা নিয়ে আমাদের আলোচ্য বিষয়। আমরা যোগকে এত ভাট করতে যাব না, আমরা যোগকে এত ভাট করতে যাব না, যে আমরা ছাত্রছাত্রী সাধারণ লোককে দিয়ে যখন আমরা করছি যোগের ব্যাপারে আলোচনা, সেখানে ডিফারেন্স বিটুইন আমরা কোথাও যাব না, বিটুইন বডি মাইন্ড ইন্টিগ্রেশন ইজ যোগা। এটা নিয়ে আমরা আলোচনায় যদি আমরা আসি, যোগকে আমরা প্রথম যদি ধাপেতে ধরি, যে মনকে এবং শরীরকে মানে একত্রিত করা কি যোগ বলে। মুনি ঋষিরা অনেক কিছু বলে গেছে, সেসব যোগেতে আমরা সাংসারিক লোকেরা যাব না। আমরা আজকে সাধারণ মানুষের জন্য এসেছি। সেখানে যোগের সাথে যোগা ফর হেলথ, তার সাথে কি কি সম্পর্ক আছে। মুনি ঋষিরাও দেখলেন যে ঠাকুরকে আরাধনা করতে গিয়ে মনোসংযোগ দরকার। সেই মনোসংযোগ করতে গিয়েই না শরীর তাদের ভেঙে যাচ্ছিল। তখন আগে কিন্তু শরীরকে সুস্থ সবল করতে হবে, তবে মনকে সংযোগ করা যায়। শরীর যদি না সুস্থ থাকে, মন সংযোগ কিছুতেই আসবে না। সেরকমভাবে তাই ওনারা নানান রকম যোগ প্রক্রিয়া শুরু করলেন। অনেক মুনি ঋষি আছেন, মহর্ষি পাতঞ্জল এইসব মুনি ঋষিদের কাছে রিসার্চ করে পরবর্তীকালে উনি আমাদের কাছে আনলেন। অতএব যোগা ফাদার হচ্ছে মহর্ষি পাতঞ্জলি, যিনি আমাদের যোগকে আমাদের মধ্যে এনেছে। তার আগে স্বয়ং শিবা করেছেন, সেসব রিসার্চ করে এনেছেন এই মহর্ষি পাতঞ্জল। এই মহর্ষি পাতঞ্জলির প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা জানিয়ে আজকে আমরা অষ্টাঙ্গ যোগ নিয়ে আলোচনা করছি। অষ্টাঙ্গ যোগ কি? যখন সব যোগকে মিশে একটা জায়গায় এলেন পণ্ডিতগণ, অষ্টাঙ্গ যোগ। সেই অষ্টাঙ্গ যোগের প্রথম এতে প্রচারক হলেন মহর্ষি পাতঞ্জল। যমা, নিয়মা, আসনা, প্রাণায়ামা, ধ্যান, ধারণা, সমাধি, এই অষ্টাঙ্গ যোগে যমা নিয়মা যদি আমরা এখন আলোচনা করতে যাই, অনেক ভাট সাবজেক্ট। সেটা হচ্ছে আগে আপনাকে সত্য হতে হবে, একদম মানে অহিংস হতে হবে, আর শৌচ হতে হবে। সেই নিয়ে আমরা পরে কোনো ভাট সাবজেক্টে আলোচনা করব। আমাদের প্রথম সাবজেক্ট হচ্ছে যোগা, অর্থাৎ যোগা মানে যোগাসন। এই 8টা যে আমাদের আছে, তার মধ্যে থার্ড পার্ট হচ্ছে যোগা, এই আসনা। তাহলে যোগা আমরা কাকে বললাম? মানে মনের সাথে শরীরের মিলন, আত্মার সাথে ভগবানের মিলন। এসবে আমরা যাব না। আমরা ছাত্রছাত্রী, সাধারণ গার্জেন, সাধারণ লোকের সাথে যদি আমরা যাই, আমরা মনের সাথে শরীরের মিলন নিয়ে আমরা কথা বলবো। তাহলে হচ্ছে আসন, তাহলে কি? স্থিরম সুখনম আসনম, মানে মুনি ঋষিদের কথাতে যদি আমরা আসি, অর্থাৎ স্থির ভঙ্গিমায়, হ্যাঁ, অনেকক্ষণ বসে থেকে যে ভঙ্গিমায় বসে থাকবো আমরা, তাকে আসন বলা হয়। অর্থাৎ যে কোনো পোস্টারে আমরা বসে থাকা, এরকম 86 লক্ষ পোস্টার আছে, স্বয়ং মহাদেব করেছিলেন। আমাদের মধ্যে মেন পোস্টার যদি 8টা থেকে 10টা ধরা হয়, তাকে ভেঙে ভেঙে আমাদের এই অনেক কালচারাল আসন এসেছে। তাহলে আসন আবার দুটো, যোগকে আবার দুটো ভাগে ভাগ করা হলো, হঠযোগ এবং রাজযোগ। হঠযোগ কি হলো? শরীরের ক্রিয়াগুলোকে সংযত করা।
সেখানে রাজযোগে পাঠানো হলো। রাজযোগে কি হলো? মনকে এবার স্থির করা। তাহলে এই দুটোর মধ্যে সহজ ব্যাপার হলো হঠযোগ, রাজযোগ। এবারে যদি আমরা আসি, আমাদের তাহলে দুটোই দরকার। প্রথমে যোগের প্রথমেই বলা আছে যে যোগা প্রথমে শুরু করতে হয় কোনো মন্ত্র দিয়ে। তাহলে মন্ত্র করতে গেলেই তাহলে আমাদের আবার দুটো দিকে আসবে, আসনেতে আসতে হবে আমাদের। তাহলে আসন আবার দু রকম, একটা হলো ধ্যানাসন, যেখানে পদ্মাসন, বীরাসন, স্বস্তিকা আসন, গোমুখ আসন, বজ্রাসন, এইসব দিয়েই তাহলে ধ্যান আগে প্রথমেই করতে হয়। মনোসংযোগ না হলে যোগা হয় না। হ্যাঁ, তাহলে প্রথমে হচ্ছে আমাদের কোনো মন্ত্র দিয়ে, যে কোনো মন্ত্র দিয়ে যোগের ওপরে আমরা শুরু করি। তারপরে হচ্ছে শাস্ত্রাসন। শাস্ত্রাসনের মধ্যে অনেক করছে, ভুজঙ্গাসন, হ্যাঁ, তার তার মধ্যে প্রথমে কিন্তু যোগের আগে যে কোনো ধৌতি ক্রিয়া করতে, ধৌতি মানে ক্লিয়ারিং প্রসেস, সে সহযোগমিশাল, কপালভাতি, প্রথমে আগে শরীরটাকে শুদ্ধি করতে হয়। করার পর এবারে আমরা মনোসংযোগ করব। তার মানে আমার সকালবেলা পাথপিত্তন সারলাম। একটা কথা আমি আসি, তাহলে যোগের সময় কোথায়, এটা একটা সাধারণ লোককে প্রথম জানাতে হয়। সময় থেকে ভালো সকাল সন্ধ্যা। কেন সকাল সন্ধ্যা? আমাদের খাবার উপরে যোগে ডিপেন্ড করছে। তাহলে খাওয়ার যদি আমরা 6 ঘন্টা খাওয়ার পর, মানে ফুল মিলের পর আমরা সকালে পাই, আবার যদি আমরা দুপুরে খাই তাহলে সন্ধ্যাবেলায় পাই। তাহলে 6 ঘন্টা খাবারের পর পেট যদি খালি থাকে যোগা করা বেস্ট। যদি আমরা লাইট টিফিন করি, হ্যাঁ, তাহলে কিন্তু 1 ঘন্টা 1.5 ঘন্টা পর যোগা করতে হবে। তাহলে যোগের কোনো স্পেসিফিক সময় নেই, খাবারের ওপর যোগের সময়। সেই সময়টা ধরে যদি আমরা যোগ শুরু করি, ভগবান মানে লর্ড অফ শিবা, যে কোনো মন্ত্র দিয়ে শুরু করতে হয়। না পারি ওং নমঃ শিবায় বলে আমরা শুরু করতে পারি। আমরা আধুনিক যুগে কর্মব্যস্ততা মানুষ, আমরা কর্মের সাথে যুক্ত, আমাদের ভার সাবজেক্ট নিয়ে চললে চলবে না। আমাদের শরীরকেও রাখতে হবে, মনকেও রাখতে হবে, তার মধ্যে যোগা করতে হবে। যোগা ফর হেলথ যদি আমরা মানি, আমাদের আমাদের প্রথম কর্ম করতে গেলে শক্তির জন্য আমাদের সুস্থ শরীর রাখতে হবে। এই সুস্থ শরীরকে রাখতে গেলে আমাদের প্রথম হচ্ছে একদম খরচায় একটা বিছানা থেকে উঠিয়ে আমরা বিছানা শুরু করতে পারি, একটা আমরা করতে পারি। আর একটা কথা আমরা আসছি, এটা খুব জেনে রাখা উচিত। সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু দাঁড়িয়ে পড়বে না। আজকে আমাদের হার্ট অ্যাটাকের ব্যাপার, সেই যোগা আসছে দেখুন, হ্যাঁ, সেখানে 30 সেকেন্ড শুয়ে থাকতে বলছে, 30 সেকেন্ড বলছে, দাঁড়িয়ে থাকতে বলছে, তারপর কোথায় কেউ ডাকলো, তখন আমাদের অক্সিজেনের মাত্রা বেনেতে খুব কমে যায়। হঠাৎ আমরা মানুষকে উঠেই বলবো না যে যোগা করতে, উঠেই বলবো না যে উঠে পড়ো, উঠেই বাথরুমে যাবো, এটা প্রথম কথা, এটা একটা যোগ। এই যে এটা কিন্তু যোগ কি, পরে কিছু কিছু মানে যোগা সূক্ষ্ম ব্যায়াম করতেন, তারপরে দাঁড়াতেন, দাঁড়িয়ে পড়ে তিনি দেখতেন, মানে এক্সারসাইজ করতেন, তারপরে যোগা করতেন। তাহলে ডাক্তারি খেলাধুলা আর জিমনাস্টিক যদি যোগ দেখবেন প্রসেস করে দিয়েছে, সেটাই হয়ে গেছে জিমনাস্টিক। তাহলে মাদার অফ গেম তো আমাদের যোগ, যেটা এক্সারসাইজ হচ্ছে জার্কি মুভমেন্ট। যোগের কোনো ওয়ার্ল্ড নেই, এটা আমরা টিচার
কাছে আমরা জেনে যখন আমরা পড়তে গেলাম তখন বলেছি যোগ ওয়ার্মিংয়ের দরকার নেই, যোগ স্লো ভাবে শুরু করতে হবে। অতএব আমরা কর্মের জন্য আমরা যোগ কিছু বা কিছু ফিটনেস সেটা কিন্তু যোগে নেই, কিন্তু আমাদের কর্মব্যস্ততার জন্য আমরা সেগুলো করি। এইসবগুলো আমাদের জানা কিন্তু উচিত। তাহলে আমরা আবার যোগে ফিরে যাচ্ছি যে শাস্ত্রাসন আমাদের কি করে। এ তো ধ্যান আসন গেল, আমরা শাস্ত্রাসন নিয়ে বেশি সময় চলবো। এই শাস্ত্রাসন জীবাণু মুক্ত করে। তাহলে আজকে আমাদের কোভিডের সময় আমাদের সংক্রমণ জীবাণু নিয়ে একটা বিশাল ব্যাপার। তাহলে যোগের মধ্যে অষ্টাঙ্গ যোগের থার্ড পার্ট আসন আছে, তাহলে কত বড় মানে জায়গা করে আছে, সেটা মানুষের অতি প্রয়োজন স্বাস্থ্যের জন্য। তারপর আসছি আমরা প্রাণায়াম। প্রাণায়াম হচ্ছে শ্বাস প্রশ্বাসের ব্যায়াম। সাধারণ শ্বাস প্রশ্বাসকে নিজের কন্ট্রোলে আনবো, সেটা কি প্রাণায়াম। সোজা কথায় আজকে সেই প্রাণায়াম করলে আমাদের শরীরে হঠাৎ হচ্ছে হৃৎপিণ্ড, মানে নার্ভাস সিস্টেম, সার্কুলেশন সিস্টেম, এই সব ভালো রাখে। অতএব তাহলে আমাদের আজকের দিনে যে কোভিড আমাদের যে আত্মগ্লানি হচ্ছে, আমাদের মনের মধ্যে একটা কষ্ট হচ্ছে, আমরা বাইরে বেরোতে পারছি না, বেরোলে একটা ভয় ভাব, আমাদের সবাইকে ঘরে বসে ফার্স্ট কথা চিন্তা করতে হবে আমাদের ইমিউনিটি পাওয়ার বাড়াতে হবে। এই ইমিউনিটিটা কি? আমাদের শরীরের জীবাণুকে এবং লোহিত কণিকাকে আমাদের বাড়াতে হবে। অর্থাৎ আমরা লোহিত কণিকা যদি বাড়াই, হ্যাঁ, তাহলে কি হবে, আমাদের শরীরে তাহলে ইমিউনিটি পাওয়ার বাড়বে। আর অক্সিজেনের মাত্রা যদি আমাদের বাড়ে, শরীর সব থেকে ভালো থাকবে। তারপর আসছে আমাদের সুষম খাদ্য। যোগের সুষম খাদ্যটা একটা সব থেকে বড় কথা। আমরা এখনকার দিনে পাশ্চাত্য দেশের খাবার বড় অভ্যস্ত হয়ে যাচ্ছি। আমাদের দেশে সচরাচর যে খাবারটা আমার হজম হবে সেটাই হচ্ছে সুষম খাদ্য। আমরা ভাত, ডাল, রুটি, তরকারি সেসব খেয়েই কিন্তু মুনি ঋষিরা জঙ্গলে থাকতেন, ফল খেয়েই তারা কিন্তু হয়েছে। এই ফলে সব থেকে বড় কথা আছে ভিটামিন সি এবং অক্সিজেনের মাত্রা বেশি। অতএব সুষম খাদ্যটা আমাদের যোগের সব থেকে প্রয়োজন। অতএব আজকের দিনে আমাদের যোগের সাথে আমাদের সুষম খাদ্যটা খুবই প্রয়োজন। শুধু আমরা যোগ করলাম সেটাই ঠিক নয়, আমাদের তার সাথে কি চিন্তা করতে হবে, মনোসংযোগ রাখতে হবে, আমাদের স্বাস্থ্যের দিক দেখতে হবে। আমরা সাংসারিক লোক, আমাদের জীবিকা অর্জন করতেই হবে, কিন্তু আমাদের সবার প্রথম চাই স্বাস্থ্য। একজন বাবা মাই পারে, হ্যাঁ, মানে সমাজকে সুন্দর সন্তান দিতে। সেই বাবা মা যদি ঠিক হয়, হ্যাঁ, সুন্দর স্বাস্থ্যের অধিকারী হয়, তাহলে সুসন্তানের জন্ম দেবে। অতএব বাবা মাকে প্রথম ধাপ হতে হবে, বাবা মাকে নিয়ম মানতে হবে। আমার খাবারটা যেন সুন্দর হয়, আমার জীবনযাত্রা যেন সুন্দর হয়। আমি 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 যে পরের জেনারেশন, একটা পরিবার থেকেই পাড়া, পাড়া থেকে সমাজ, সমাজ থেকেই দেশ, এই দেশ গঠন উঠেছে। তাহলে বাবা মা হচ্ছে প্রথম মানে আমাদের ধাপ। মানে বাবা মা মানে সেরকমভাবে আমি একটাতে যাচ্ছি যে আমাদের আজকে অনেক ছাত্রছাত্রী কম্পিটিশান করছে। এই কম্পিটিশান করতে গেলে কতগুলো জিনিসের আমার দরকার। যখন কম্পিটিশান করতে যাচ্ছি, আমি একজন পোস্ট মেডিসিনের লোক। আমার গুরু হচ্ছে ডাক্তার মিসির রঞ্জন চৌধুরী এবং স্বর্গীয় কল্যাণ মুখার্জি। ওনাদের আন্ডারে আমি ফিজিওথেরাপি করে দিচ্ছি, এখনও করছি মিসির রঞ্জন চৌধুরীর আন্ডারে। ওনার সাথে আমি অনেক মানে খেলার ডাটা করতে যাই। সেখানে গিয়ে প্রথম ধাপ দেখছি, এবার আমি সাধারণ লোকের থেকে কম্পিটিশান গ্রুপে আসছি। কম্পিটিশান গ্রুপে আমি সবসময় গিয়ে দেখছি যে আমি অনেক দিন ধরে, ধরুন যাদের কথা না বললে নয়, স্বর্গীয় পরম শ্রদ্ধেয় স্বর্গীয় বিষ্ণুচরণ ঘোষ আমাদের যোগের প্রচারক। তারপরে অনেক প্রচারক আছে, যেমন মাননীয় শ্রদ্ধেয় স্বর্গীয় কমল ভান্ডারী, নীলমণি দাস, নবেন্দু সাহা এবং নীরেন মজুমদার। যাদের নীরেন মজুমদার এবং নবেন্দু সাহা এবং নীলমণি দাসের সংস্পর্শে আমি যেতে পেরেছি। তাদের কাছ থেকে সব থেকে দেখেছি যে এনারা যোগের প্রচারক, এবং এইসব ভাইয়েরাও প্রচার করছে। এখন প্রশান্ত সাহা, আমাদের দিব্যেন্দু সাহা, এই সাহা, এসব আমার বন্ধুবর আছে,
যেমন দেবদত্ত, এদের সাথে আমি বহু কাল ধরে আছি। অর্থাৎ যোগ প্রচারক হিসাবে এনারা যে কাজ করছে, এই প্রতিযোগিতারও দরকার আছে। যোগে অনেক জায়গায় ভ্রান্ত অনেকগুলো কথা আছে, যোগের আবার প্রতিযোগিতা হয়, কিন্তু ছাত্রছাত্রীদের এই ভাট সাবজেক্ট দিয়ে রাখা যাবে না। তাহলে যোগের প্রতিযোগিতার দরকার আছে। প্রতিযোগিতা যখন আসবে সেটা একটা পোস্ট মেডিসিনে চলে আসে সব খেলার সাথে। আমি আগে পোস্ট মেডিসিনের সক্রিয় সদস্য এবং ডাক্তার পোস্ট বিশেষজ্ঞ ডাক্তার নিশিত রঞ্জন চৌধুরীর সাথে আমি সবসময় আছি। আমি একটা জিনিস জেনেছি ডাক্তার কল্যাণ মুখার্জির কাছ থেকে, ওনার অনেক বই আছে, আপনারা পড়ে দেখবেন যে 3টে ক্যাটাগরিতে বডিকে ভাগ করা হয়েছে: এন্ডোমার্ক, মেসোমার্ক অ্যান্ড এক্সটোমার্ক। হোয়াট ইজ এন্ডোমার্ক? এন্ডোমার্ক বডি কি? গোলাকৃতি, চর্বি জাতীয়, একটু মোটা সোটা, আর হ্যাঁ একটু মোটা সোটা চেহারা, মানে এন্ডোমার্ক। আর মেসোমার্ক কি হচ্ছে? একদম সুটাম চেহারা, যাকে বলা হয় টার্জান। আর হচ্ছে এক্সটোমার্ক হচ্ছে তার শরীরে কোনো চর্বি থাকবে না, রোগা ছিটছিটে, এবং তাদের নমনীয়তা থাকবে। এইসব ক্যাটাগরি ক্যান্ডিডেটগুলোর মধ্যে এন্ডোমার্ক একটু দুর্বল হৃৎপিণ্ডে। অতএব আমাদের ভাবা উচিত, আমি অনেক কম্পিটিশন মাঠে গিয়ে দেখেছি যে জোর করে আসন টানতে এন্ডোমার্ক পড়ে গেছে, আঘাত পাচ্ছে কম্পিটিশন মাঠে। অতএব আমি কাউকে উপরে দিচ্ছি না, আমার অভিজ্ঞতা থেকে দেখছি এনডিও মাপেদের যদি মাপা যায় প্রথম, তাহলে আসি যে এইসব যখন প্রতিযোগিতা করে ফার্স্ট আসতে হবে শরীরের হচ্ছে মানে হেলথ চেক আপ নাহলে কিন্তু কিছু হয় না। হেলথ চেক আপ কি? তার উচ্চতা মাপতে হবে, তার ছাতি মাপতে হবে, তার ব্লাড প্রেশার মাপতে হবে, তার অক্সিজেন মাপতে হবে, তার পালস বিট মাপতে হবে, এবং তার অনেকগুলো ইসিজি করে তার বুকের দেখতে হবে, তার হার্টের, এসব অনেকগুলো পদ্ধতি আছে। আমরা অনেক খেলোয়াড়দের করতে যাই। তাহলে যোগকে যখন আমরা প্রতিযোগিতা করছি সেটাও কিন্তু একটা পর্যায়ে করছি। অনেক সংস্থা এটা মানে না। অন্তত যদি নাও মানে, একটা ভালো পোস্ট মেডিসিন ডাক্তারের কাছে পাঠাক, হ্যাঁ, তারা বলে দেবে যে শারীরিক সমস্যাটা কি আছে, হ্যাঁ, তাহলে কিন্তু যোগা করে উচিত। আবার একটা দেখছি এই জোর করে যোগাকে করা, যোগা কোথাও নেই। আমি প্রথমেই বলেছি স্থিরভাবে সুখভাবে থাকবে যোগা। যে আমাদের একটা কম্পিটিশনে প্রাইজ হবে, তার জন্য একটা কোচ মানে তাকে যা ভালো যেখানে সে মানে পড়ে গিয়ে আঘাত পেল, এইগুলো ঠিক নয়। আমি একজন জিমনাস্ট, আবার এক্স জিমনাস্ট, আমার দিলীপ দাস আমার কোচ, সদ্য মানে উনি অনেক বড় কোচ, ওনার পাশে থেকে আমি দেখেছি, বলতো দেখ এমন ফিগার টান, পড়ে গেলে তুই 0 পাবি। স্যার একটু পাস করো, আমাদের আরো দুজন গেস্ট আছে, 8টার সময় আমরা ক্লাস শুরু হয়ে যাবে। আচ্ছা ঠিক আছে স্যার। তাহলে কি হচ্ছে, আমি সোজা কথা বলছি, যোগকে যদি আমাদের মানে হেলথ ধরা হয়, প্রথম তাহলে হেলথ চেক আপ করাতে হবে, এবং ঠিক যোগা মানে প্রশিক্ষকের কাছে শিক্ষণ নিতে হবে। যোগকে বিকৃত করে কিছু করা যাবে না। নমস্কার। धन्यवाद। আমি এখানে अब हमारे बीच आ रहे हैं हमारे आज दूसरे गेस्ट, एमिनेंट योगा पर्सनालिटी एंड प्रेसिडेंट योगा एकेडमी, मिसेस जयश्री सरकार मैडम। प्लीज मैडम आप आइए, कुछ शब्द हमें हमारे यहाँ पे जो पर्सनल है सबको बताइए मैडम। जयश्री मैम प्लीज कम। हाँ नमस्ते। नमस्ते जी। Can I speak in Bengali? ওকে নো ম্যাম, বলতে পারেন। ওকে, থ্যাংক ইউ। আজকে আমাদের যে সিফিট গ্রুপ এবং ইনস্টিটিউট অফ যোগা একাডেমির পক্ষ থেকে প্রসারিত করা হচ্ছে যে প্রোগ্রামটা যোগার ব্যাপারে, যোগা ফর হেলথ, তাতে আজকে যারা সকলে উপস্থিত হয়েছেন, যে সমস্ত শিক্ষক ব্যক্তিবর্গ
এবং বিশিষ্ট যোগাবিদ, যোগা বিশেষজ্ঞ, এক কথায় যোগা বিশারদ বললে ভুল হবে না, তারা এসেছেন। তাদের প্রত্যেককে আমাদের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানাই, আন্তরিকতা জানাই এবং কৃতজ্ঞতা জানাই। আজকের এই বিশেষ একটা সিচুয়েশন, যখন গোটা পৃথিবী তোলপাড় হয়ে যাচ্ছে, কিছু সামান্য, মানে আপাত দৃষ্টিতে মনে হচ্ছে সামান্য, কিন্তু সাইলেন্ট কিলার হিসেবে কাজ করে যাচ্ছে যে ভাইরাসগুলো, ব্যাকটেরিয়াগুলো আমাদেরকে একেবারে পেরে ফেলেছে, বাংলা ভাষায় যাকে বলে। সেই ভাইরাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে গিয়ে আমরা গোটা পৃথিবী আজকে মানে একদম বিধ্বস্ত, বিপর্যস্ত, কিছুতেই এর কিছু মোকাবিলা করা যাচ্ছে না। তো সেই সময় বিজ্ঞানকে সামনে রেখে আমরা যে এই আমাদের অনলাইন যে প্রসেসের ক্লাসগুলো করতে পারছি, তার জন্য যারা আমাদের সাহায্য করছেন তাদেরকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ। কারণ যে ক্লাসগুলো হচ্ছে আমাদের বিশেষভাবে মানে স্টুডেন্টদের জন্য তো ভীষণভাবে কার্যকরী। নট অনলি স্টুডেন্ট, যোগা জাজি, যোগা টিচার অ্যান্ড মানে সর্বোপরি যে যোগা গার্জিয়ান, যোগা নিয়ে যারা থাকতে ভালোবাসেন, যোগা লাভার্স, প্রত্যেকের কাছে আজকের আমাদের এই ক্লাসগুলো ভীষণভাবে উপকারী হচ্ছে। আমি রিসেন্ট কিছুদিন আগে একটা ক্লাস করলাম নরসিংহ দত্ত কলেজে, মানে প্রফেসররা কয়েকজন ক্লাস করলেন, তারা পর্যন্ত ভীষণভাবে বলছেন যে আমাদের এই ধরনের ক্লাস ভীষণ উপকার দিচ্ছে, আমরা উপকৃত হচ্ছি। কারণ আজকের দিনে দাঁড়িয়ে আমাদেরকে প্রত্যেকে এই কথাটা স্বীকার করতে বাধ্য, মেডিসিন নিশ্চয়ই আছে, ডক্টর নিশ্চয়ই আছেন, তারা আমাদের মাথায় থাকবেন, চিরকালই থাকবেন। আমরা বিজ্ঞানকে নিয়ে এগিয়ে যেতে চাই, বিজ্ঞান থাকবেই, কিন্তু সবার আগে যে আমাদের মনের মধ্যে প্রথিত করতে হবে যে জীব এবং দেহ, মানে জীবাত্মা এবং পরমাত্মা এক, এই দুজনকে আমরা সম্মিলিত করে একটা শক্তিকে আমরা নিজেদের মধ্যে ধারণ করব, এবং সেই ধারণ শক্তি আমাদের সামনে আগত যে সমস্ত বিপদ, সেই বিপদগুলোকে মোকাবিলা করতে সাহায্য করবে। এর তো কোনো, এই কথার কোনো ব্যত্যয় নেই, প্রত্যেককে এই কথা যে মানতেই হবে। এবং তার জন্য আমাদের প্রত্যেককে শরীরে মনে, কিছুক্ষণ আগে আমাদের অলোক দাস দা, যিনি যার সঙ্গে আমার খুব পার্সোনালি পরিচয় নেই, কিন্তু ওনার কথা অনেক শুনেছি আমাদের অমল স্যারের নিচে, তা উনি যে বলে গেলেন যে শরীরকে এবং মনকে উভয়কেই ভীষণভাবে একত্রিত করতে হবে এবং সেলফ কনসিয়াস হতে হবে, আত্মসচেতন হতে হবে, অ্যান্ড নিজেকে খুব কন্ট্রোলে রাখতে হবে, নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে। এইগুলো রাখতে গেলে আমাদের যে লাইফস্টাইল, আমরা যে লাইফস্টাইলে গিয়ে দাঁড়াবো, সেই লাইফস্টাইলই আমাদের সামনে আসন্ন যে বিপদ সেগুলো মোকাবিলা করতে পারবে। আজকে 2020 আমাদের যে প্যান্ডামিক সিচুয়েশনে দাঁড় করিয়েছে, এবং আমরা ভাবছি 20 ডিসেম্বর পেরিয়ে যাবে, সেই সিচুয়েশন কভার করবো, নেভার। আমার মানে স্বল্প অভিজ্ঞতা এবং চতুর্দিকের লেখাপড়া, আলাপ আলোচনা, বহু বিদগ্ধ জন যারা আছেন তাদের আলাপ আলোচনায় আমার মাথায় এটুকু প্রথিত হয়েছে যে আগামী বছরগুলো আরো ভয়ঙ্কর আসছে। হ্যাঁ, কারণ একটা দুটো ভাইরাস নয়, প্রচন্ড রকমের ক্ষতিকারক ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া আমাদের বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়াচ্ছে সব রকম ভাবে। আমরা আজকে ভাবছি জলে ভাইরাস, কালকে ভাবছি বনে ভাইরাস, পরশুদিন ভাবছি বাতাসে ভাইরাস, মানে ছড়িয়ে পড়েছে ভীষণভাবে। সেগুলো এখন রিল্যাক্স করছে, করে আমাদের ক্ষতি করছে। তা এক্ষেত্রে তো আমাদের বিপদ আমাদেরকে সামলাতে হবে। তো সেক্ষেত্রে নিজেদের শরীরকে একদম সুস্থ সবল রাখার চেষ্টা নিজেদেরকেই করতে হবে। এর জন্য ওই যে বললাম, আত্মসচেতনতা, আত্মনিয়ন্ত্রণের যে ক্ষমতা, এগুলো গ্রো করতে হবে। এবং তার জন্য সামনে যে একমাত্র পথ আমার মনে হয়, দ্যাট ইজ যোগা। নট অনলি যোগাসন, নট অনলি যোগা দর্শন, একত্রে যোগাসন বা যোগা দর্শন বা যোগা চর্চা ইত্যাদি নয়, এই যোগার মাধ্যমে আমরা নিজেদেরকে সম্পূর্ণ যদি যোগার কাছে নিজেদেরকে বিলিয়ে দিতে পারি, আমার মনে হয়
সাথে নিশ্চয়ই যোগাও একটা অ্যাপারেন্টলি এটা একটা বৈজ্ঞানিকভাবেই আমাদের শরীরে কাজ করে। আমরা সবাইকে নিয়ে সুস্থভাবে জীবনযাপন করতে পারবো। এবং আমাদের এই যে আজকে যারা বলছেন, কিছুক্ষণ আগে অলোকদা বললেন, আমরা যোগের প্রচারক যারা ছিলেন, যোগের প্রসার যারা করেছেন, তাদেরকে নমস্কার জানিয়ে তাদের পথ অবলম্বন করে আমরাও কিন্তু আজকে এইভাবেই আস্তে আস্তে যোগের প্রচার চালাচ্ছি। আমাদের উদ্দেশ্য ওই একটাই, পকেট ভরা উদ্দেশ্য নয়, উদ্দেশ্য শরীর স্বাস্থ্য একেবারে উন্নতির পথে, শরীর স্বাস্থ্যকে এগিয়ে দেওয়া। তার জন্য যোগাকে একদম আঁকড়ে ধরে এগোনো ছাড়া আমাদের সামনে আর কোনো পথ নেই। অতএব যোগা ফর হেলথ এই যে ক্লাসটা আজকে হবে, এটা আমাদের কাছে ভীষণভাবে উপযোগী। আমার সুহৃদকে যারা এই ক্লাসে জয়েন করেছেন অনেকেরই নাম দেখলাম, আমি অনেককেই চিনি, অনেককেই নামে জানি, অনেককেই ব্যক্তিগতভাবে চিনি, বা অনেককেই পড়েছি অনেকের সম্পর্কেই। তা সেক্ষেত্রে প্রত্যেককেই আমার রিকোয়েস্ট যে আমরা আরো বেশি করে যোগের প্রচারে এগিয়ে যাই এবং তাতে আপামর যে সমস্ত জগৎ, আমাদের মানব জগৎ তো বটেই, জীব জগৎ, জীব জগৎ আমাদের ভীষণভাবে উন্নত হবে। এবং তার জন্য আবার বলি, যোগের প্রসার একমাত্র পথ। এবং যোগা অভ্যাস, যোগা নিয়ে আলোচনা, যোগা আমাদের জীবন সেইটাই হয়ে যাক। তাতে সাইকোসোম্যাটিক যে সমস্ত রোগ, আমাদের পরিস্থিতি, আমাদের বাতাবরণ যে তৈরি হয়েছে, আজকের বাতাবরণ, তাকে ডিফিট করার জন্য আমরা সবাই এগিয়ে যাই একসাথে হাত ধরে। এ কথা বলে আজকে আমার স্যার অমন তারা মহাশয় এবং আরো যারা সমস্ত আছেন, কিছুক্ষণ আগে যার কথা শুনলাম, এবং সুকুমার বাবু এবং বিনয় স্যার, প্রত্যেককে আমার পক্ষ থেকে শ্রদ্ধা অভিজ্ঞতা জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। আমরা আবার কিন্তু এই প্রচারে আবার সামনে অনেক ক্লাস নিয়ে আসবো, তাতে আপনাদের সহযোগিতা কামনা করি। এইভাবে আমাদের যোগের প্রসার এগিয়ে চলুন। জয় যোগ। धन्यवाद मैडम। थैंक यू। धन्यवाद मैडम, आपने कम समय में बहुत अच्छे से बात बताया सबके लिए। योगा सब कुछ है, योगा होलिस्टिक मेडिसिन भी है। योगा से हम लोग मेडिसिन बिना स्वस्थ रह सकते हैं। अब हम आमंत्रित करेंगे हमारे अंतिम गेस्ट, एमिनेंट योगा पर्सनालिटी एंड योगा कोच मिस्टर वासुदेव भट्टाचार्य महाशय। प्लीज आप आइए। आप वासुदेव भट्टाचार्य महाशय। हेलो हेलो सर, सर कीजिए आप। হ্যাঁ নমস্কার, सर आप अपना, हाँ सर स्टार्ट कीजिए। বাংলা বলছি। হ্যাঁ বাংলা বলুন বলুন। একটু পিছনে আপনার চেহারাটা দেখা যাচ্ছে না, একটু পিছনে সরে ক্যামেরাটা একটু, হ্যাঁ 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 ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে স্যার বলুন। বেশি সরে গেছে এখন, এখন বেশি সরে গেছে। হ্যাঁ ঠিক আছে এখন বলুন। ঠিক আছে, হ্যাঁ ঠিক আছে। নমস্কার, হ্যাঁ, শুভ নমস্কার। সন্ধ্যা। বর্তমানে আমাদের সামনে এক চরম সংকট উপস্থিত, কোভিড-19 বা করোনা ভাইরাসের মরণ আতঙ্কে সারা পৃথিবীর মানুষ আজ জর্জরিত। রোগাক্রান্তের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বেড়ে চলেছে মৃত্যু মিছিল। এই ভয়ঙ্কর মহামারীর দিনে লোক যখন বাইরে বেরোতে পারছেন না, কিপফিট গ্রুপ ও যোগা একাডেমি শুধু ফ্যামিলি, কিপফিট গ্রুপ ও যোগা একাডেমি পরিচালক বৃন্দদের মধ্যে গুরুজনদের প্রণাম, আমার কনিষ্ঠদের শুভ শারদীয়ার প্রীতি শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা জানিয়ে কিছু বলছি। আমাদের ভারতীয় মুনি ঋষিদের আবিষ্কৃত যোগবিদ্যা সারা পৃথিবীর বিস্ময়ের বস্তু। সারা পৃথিবীর লোক এই যোগবিদ্যাকে গ্রহণ করেছেন। বর্তমানে গতি ও প্রতিযোগিতার যুগ, স্পুটনিকের গতিতে মানুষ ছুটে চলেছেন নতুনত্বের সন্ধানে। কিন্তু আমাদের এই বৈদিক ভারতবর্ষে জ্ঞান বিজ্ঞান ও আধ্যাত্মিক সাধনার মৌলিক রহস্য দেশকালের সীমা অতিক্রম করে আজ ও সকল মানুষকে আকৃষ্ট করে। ভারত ভূমি শান্তির, ত্যাগের, সেবার, যোগের, মিলনের, প্রেমের, জ্ঞানের ও সাম্প্রদায়িক মুক্ত ভূমি। এখানে নানা ভাষা
নানা মত নানা জাতির একসাথে বসবাস করেন, ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ। ভারতীয় মহাপুরুষরা দেখিয়েছেন ত্যাগের আদর্শ, দান করে গেছেন নব নব যোগ জ্ঞান বিজ্ঞান, বিতরণ করেছেন পরম প্রেম, ত্যাগ, সংযম, সত্য, ব্রহ্মচর্য, বীরত্ব, পুরুষত্ব, মনুষ্যত্ব, উদ্যম, উৎসাহ, আত্মোৎসর্গ করেছেন মহতী সেবা কর্মে। সেই রকম কিপ ফিট গ্রুপ ও যোগা একাডেমিও এই মহামারীর দিনেও অনলাইনে যোগাসন প্রতিযোগিতা, ন্যাশনাল লেভেল যোগা ওয়ার্কশপ করে চলেছেন। ধন্যবাদ জানাই সকলকে, কৃতজ্ঞতা জানাই এই মহতী অনলাইন ন্যাশনাল লেভেল যোগা ওয়ার্কশপে আমাকে কিছু বলার সুযোগ দেওয়ার জন্য। অলোকবাবু বলে গেছেন যোগাসন করলে কি কাজ হয় না হয়, সেই জন্য ওই দিকটা আমি আর যাচ্ছি না। অলোকবাবু যথেষ্ট ভালোভাবেই বলেছেন। এই প্রচেষ্টা দীর্ঘজীবী হোক এবং সকলের ঘরে ঘরে পৌঁছে যাক। বারে বারে যেন আমরা যোগাপ্রেমীরা এই রকম অনুষ্ঠানে উপস্থিত হতে পারি। ধর্ম, জাতি, রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি সবার ঊর্ধ্বে মানব জাতি। তাই সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হওয়াটা খুবই জরুরি। মহাপুরুষরা বলেছেন সর্বসাধনার বড় সাধনা শরীর সাধনা, শরীর নাহি যার কিছু নাহি তার। বর্তমানে আমাদের সমাজে আদর্শহীন, ভোগবাদী, স্বার্থান্বেষী কিছু ভেকধারী, মিথ্যাবাদী সমাজসেবীরা কোনো আদর্শ আমাদের সামনে রাখতে পারছেন না। তবুও আমাদের মনে রাখতে হবে, প্রীতি ও প্রেমের বাঁধনে মিলিয়ারে পরস্পরে স্বর্গ আসিয়া দাঁড়ায় আমাদের কুঁড়ে ঘরে। সুস্থ সমাজ, সুস্থ মানুষ, সুস্থ সুন্দর দেশ গড়ে তোলার আন্দোলনে কণ্ঠ মেলান। হাত ধরো উন্মুক্ত নির্ভয় মুক্ত বোধে, হাত রাখো বিশ্বাসী হাতে। স্বপ্ননীল মানুষেরা তাদের স্বপ্ন দিয়ে, শ্রম দিয়ে, আদর্শ চেতনা, সংগ্রাম দিয়ে, ভালোবাসা দিয়ে, আপন মনের মাধুরী মিশায়ে তিল তিল করে গড়ে তুলেছেন যে দেবালয়, যেখানে সর্বস্তরের মানুষের মিলন, প্রাণের আরাম, নীরব সুস্থ থাকা, মনের আনন্দে শান্তিতে থাকার এই সেই প্রতিষ্ঠান কিপ ফিট গ্রুপ ও যোগা একাডেমি। এই প্রতিষ্ঠান দেখতে দেখতে শিশু থেকে যৌবনে পদার্পণ করেছে। জন্ম 1999 সালে। সুস্থ সমাজসেবী, সংস্কৃতিপ্রেমী, যোগাপ্রেমী মানুষের দ্বারা আজকের অনুষ্ঠান। কেননা আলোর পথযাত্রী যারা, থামা নেই তাদের, ঘাটে ঘাটে তার ঘট ভরা, নতুন নতুন পথে কেবলই বাঁক ফেরা। আর প্রতি বাড়ি জীবনের ময়ূরকণ্ঠীর আকাশে মাটিতে মুঠো মুঠো আলোর ফুল, সোনার ফুল ছড়িয়ে যাওয়া। প্রতিটি মানুষের ভিতরেই প্রচ্ছন্ন থাকে সৃষ্টিশীলতা, কতদূর নিয়ে যেতে পারে মানুষকে, যার বাহক ও ধারক হচ্ছে মন। কেউ কি জানে এই সৃষ্টিশীলতা? মানুষ যখন মানুষের সেবার উদ্যোগ নেয় এবং মানুষ তা উপলব্ধি করে, তখন সে উদ্যোগ মানুষের সহযোগিতায় এগিয়ে যায়, মানবিক প্রতিষ্ঠান রূপ লাভ করে। আমাদের কিপ ফিট গ্রুপ গড়ে ওঠার দিন থেকে এই সংস্থায় থেকেছেন সমাজের নানা স্তরের সুস্থ সাংস্কৃতিক কাজের যোগাপ্রেমী মানুষের বিশাল বলয়। তাদের জানাই আমার প্রণাম, শ্রদ্ধা, ভালোবাসা। কিপ ফিট গ্রুপ শুধু হাওড়া নয়, পশ্চিমবঙ্গ নয়, ভারতবর্ষ নয়, সারা বিশ্বের দরবারে পৌঁছে গেছেন। কিপ ফিট গ্রুপের কর্ণধার মাননীয় শ্রী অমল কাঁড়ার মহাশয় ও সমস্ত গ্রুপের হয়ে যারা দায়িত্ব নিয়ে মানুষকে সুস্থ রাখার প্রতিজ্ঞা নিয়ে কাজ করছেন, সকলকে জানাই ধন্যবাদ। বলো 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 সবে, শত বিনা বেনু রবে, ভারত আবার জগৎ সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে। তেমনি এই কিপ ফিট গ্রুপ ও যোগা একাডেমি জগৎ সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে, সবার মনের মণিকোঠায় স্থান করে নেবে।
আর এই যে কোভিড নিয়ে উনি অলোকবাবু বলে গেছেন। আর একটু শর্ট করুন, সময় হয়ে যাচ্ছে, আমাদের ওভার চলছে। আচ্ছা আচ্ছা, ধন্যবাদ একটু ধন্যবাদ। একটু জয় short, যোগ, জয় যোগ। একটু- সকলে যোগ করুন, সুস্থ থাকুন। কিপ ফিট গ্রুপ जिंदाबाद। धन्यवाद सर। नमस्कार नमस्कार। भट्टाचार्य महाशय को असंख्य धन्यवाद। अब हम स्टार्ट करेंगे हमारे आज का चौथा नेशनल लेवल योगा वर्कशॉप का। आज का जो हमारे रिसोर्स पर्सन है योगा गुरु सुखमय नाथ, नेशनल एंड इंटरनेशनल योगा जज, NSNI योगा कोच। और उनके बारे में मैं और 2-4 बातें बोलना चाहता हूँ। हम सब जानते हैं सुखमय जी सिर्फ योगा करते हैं, लेकिन उनके पीछे और कुछ भी है। सुखमय जी योगा के साथ पहले करते थे वेट लिफ्टिंग, पावर लिफ्टिंग, बॉडी बिल्डिंग। राष्ट्रीय स्तर में बहुत ही नाम कमाया उन्होंने। आज हम उनके योगा को देखेंगे। योगा का टॉपिक भी बहुत अच्छा है, योगा फॉर हेल्थ। उससे पहले मैं कुछ और कहना चाहता हूँ। हमारे आज का जो प्रोग्राम है, या कई दिन से हम लोग जो लॉकडाउन से जो प्रोग्राम कर रहे हैं, के बाद एक प्रोग्राम कर रहे हैं, उन प्रोग्राम में हमने जो कीप फिट ग्रुप और योगा एकेडमी या YSS के माध्यम से जो प्रोग्राम कर रहे हैं, उनको हम अपने दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। मिस्टर अमल करार जी, डायरेक्टर ऑफ कीप फिट ग्रुप, प्रद्युत सिंह राय महाशय जी, कमल हजरा जी YSS का डायरेक्टर, अशोक कुमार मंडल, अनुरिमा हजरा जी, सुतपा करार जी, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। उनके पूरे टीम को बहुत बहुत धन्यवाद इतना अच्छा प्रोग्राम अरेंजमेंट करने के लिए। उनके लिए आज हमारे पूरे देश के 100, 150, 200, 300 बच्चे एक साथ क्लास कर पा रहे हैं। घर में बैठ के जो अच्छे अच्छे शिक्षा ले रहे हैं, प्रैक्टिकल बोलिए, थ्योरी बोलिए, बहुत अच्छे अच्छे टीचर से वो जो गाइड मिल रहे हैं उनको, उसके लिए इन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम समय बर्बाद ना करते हुए हमारे योगा गुरु आज का जो रिसोर्स पर्सन है मिस्टर योगा गुरु सुखमय नाथ जी को आमंत्रित करता हूँ आज का क्लास प्रारंभ करें। सुखमय जी प्लीज काम आप अपना क्लास स्टार्ट कीजिए। सुखमय नाथ सर। यस यस। हाँ सर, आइए आप अपना क्लास स्टार्ट कीजिए। थैंक यू वेरी मच माय ब्रदर विनय भट्टाचार्य जी। धन्यवाद सर। সুকুমার गुड इवनिंग ऑल। সুকুমার একটু পিছিয়ে যান, একটু পিছিয়ে যান, পুরো দেখা Okay, যাচ্ছে না okay. আপনাকে। হ্যাঁ 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 একটু ঠিক আছে এখন? ঠিক আছে হ্যাঁ, ঠিক ঠিক আছে। আছে ঠিক আছে। Good evening all of you, all the yoga lovers, practitioners, coaches, judges, organizers, सबको मेरा नमस्कार। और मेनली ये कीप फिट ग्रुप योगा एकेडमी का जो डायरेक्टर है अमल करार जी को मेरा नमस्कार, प्रद्युत सिंह राय को मेरा नमस्कार, जितना भी ऑर्गेनाइजर है सबको, कीप फिट ग्रुप का सबको मेरा नमस्कार। आज का जो मेरे योगा फॉर हेल्थ का जो वर्कशॉप का कुछ बोलने के लिए ये जो अपॉर्चुनिटी दिया उनके लिए मैं थैंक्स ऑल ऑफ यू। ये योगा वर्कशॉप के लिए हम लोग सब लोग मिलके खूब लगा था। मैंने आसाम से मैं और डॉक्टर विनय भट्टाचार्य जी मेरे ब्रदर, हम लोग सब लोग मिलके, फिर अमल करार जी और भी अशोक मंडल जी, सब लोग मिलके कोशिश किया था सारा भारत से मैक्सिमम पार्टिसिपेंट्स आए। तो हो सकता है अभी भी मेरा ख्याल से 100 का ऊपर में है, लेकिन यार पार्टिसिपेशन टुडे ऑलमोस्ट 80 पार्टिसिपेशन है। तो हो सकता है किसी का सुविधा असुविधा हो सकता है, नो प्रॉब्लम। जिसका इंटरेस्ट है कोई भी काम छोड़ के भी वो बैठ सकते हैं। ये ऑनलाइन जो आपको जो वर्कशॉप हो रहा है इसका बहुत जरूरी है। मेरे देखिए अभी कितना सुंदर सुंदर बात सुनने में मेरे ऐसे लग रहा है मैं क्यों बोल रहा है, मैं नहीं बोल के आप लोग बोलने से अच्छा था। अभी ये आलोक कुमार दास इतना सुंदर डिस्क्रिप्शन किया, आलोक कुमार दास इतना सुंदर डिस्क्रिप्शन किया, इतना अच्छा लगा, मेरा सुनने के दिल कर रहा है। मैं जो गुरु मैंने को बताया, जो गुरु में मैंने टाइटल मिला, लेकिन एक्चुअली क्या है मैंने एनालाइज किया था 1990 में। उसका बाद मेरा गुरु जी स्वामी बोधानंद जी पुरी महाराज और वर्धमान में है, तो उनको प्रेरणा से, उनको आशीर्वाद से मैं इस जगह पर हूँ। अब मेरे को सारा भारत का बहुत लोग जानता है, बहुत सा स्टेट का
ये जोगो लवर्स है, जो योगासन का साथ है जुड़ा हुआ है, सब लोग मेरे को जानता है। तो मैंने इस लाइन में आपको 1974 से मैं जुड़ा हुआ हूँ, 1974 यस। उसका बाद 1990 और उसका पहले भी मैं ऑर्गेनाइजिंग में लगा हुआ हूँ। अभी मैं ऑल असम का जनरल सेक्रेटरी हूँ और जुगो फिजिक फेडरेशन ऑफ इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट। अभी फिलहाल कीप फिट ग्रुप के साथ फुल प्रोजेक्ट हम इन्वॉल्व हो गया हूँ। जो भी काम हो, जो भी कुछ भी हो, कीप फिट ग्रुप के लिए मैं अभी कर रहा हूँ। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, खुश लग रहा है जो कुछ काम करने के लिए। मैं होल डे बिजी रहता हूँ योगासन के लिए। ये फिलहाल ये लास्ट वीक में मैं इंटरनेशनल जो ऑनलाइन कंपटीशन हो रहा है, आप लोग सबको मालूम है, नेशनल कंपटीशन हो रहा है, इंटरनेशनल कंपटीशन हो रहा है, सबको मैं सब लोग मिलके मेरे को इनवाइट करके जजेस के लिए बुलाया था। उसमें जजेस करना, रात 12-1 बजे तक जजेस करना, इतना बिजी शेड्यूल। फिर मैं भी दिग्बय में भी एक योगा का कंपटीशन कर रहा हूँ कंटिन्यू। आज में सेकेंड डे हो गया, कल थर्ड डे होगा, कंटिन्यू ये सब काम कर रहा है। मेरे कोई समय नहीं है, टोटल होल डे हम बिजी है ये योगासन लेके। आज का जो टॉपिक दिया है, मैंने सोचा था क्या करेगा, मेरा इतना बिजी शेड्यूल, फिर इसमें हर रोज हम बैठ रहा है उसको परिचालना कर रहा है। ठीक है, जो भी हो, हम इतने एक्सपर्ट नहीं है, जितना बा मेरे जानकारी है आप लोग से शेयर करेगा। ये शेयर करना है मेरा काम है। मेरे सब गुरु लोग इधर में बैठा हुआ है, उन लोग के साथ में योगासन का बड़ा बड़ा बात करना मेरा वो इतना क्षमता नहीं है। तो मेरा जितना कुछ जानता है, जानकारी है, उतना आप लोग से शेयर करेगा। उसका पहले एक मंत्र देके शुरू करता हूँ। ओम संगच्छद्दं संवद्धतं संगवो मनासि जानतं संगवो मनासि जानतं देवाभागे यथा पूर्वे देवाभागे यथा पूर्वे संजनानाय उपासते संजनानाय उपासते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। मैं उसके साथ मेरा गुरुजी स्वामी बोधात्मानंद जी, जो मेरे को लाइक समझा है जी, इस योगासन लेके मैं आगे बढ़ाऊं, कुछ काम करूं, उनका आशीर्वाद देके भी मैं बहुत आगे इतना दूर आया है। कुछ दिन पहले भी उनको भी मैं कांटेक्ट किया था, उनको आशीर्वाद लेके मैं ये सब काम कर रहा हूँ। फिर उनको गुरुजी को मेरा शतकोटि प्रणाम। देखिए, योगा फॉर हेल्थ, ये जो टॉपिक्स है, योगा लेके हमको हेल्थ के बारे में हम लोग क्या करेगा। अभी थोड़ा देर पहले आलोक कुमार दास ने इतना सुंदर बताया, प्राचीन वैदिक युग से ये योगासन चल रहा है। योगा क्यों करेगा? उस समय से वो लोग सोचा था, वो लोग जब तपस्या करता रहा, ध्यान जब करता रहा, वो उन लोग का चलना फिरना ढंग जो था, खाना पीना, कुछ ना कुछ उन लोग का प्रॉब्लम होता रहा, कुछ डिजीज होता रहा। ये खाना पीने का वजह से, जो वातावरण का वजह से, तो उनको शरीर को हेल्थ अच्छा रखने के लिए तो उन लोग धीरे धीरे ये योगा का सिस्टम में लेके आया। अभी हम लोग जो महर्षि पतंजलि या आदि गुरु शिव, उन लोग को सैल्यूट करता हूँ। उन लोग का जरिए से ये योगासन अभी सारा विश्व में परिचित है। ये बहुत गुरु आया, बहुत ऋषि आया, तो जो भी हो उस हम लोग को रास्ता दिखा दिया, क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है, कैसे करके शरीर को ठीक रखना है। बहुत सारा लॉट्स ऑफ वे हम लोग के पास है। अभी शरीर को ठीक रखने के लिए अभी फिलहाल योगासन एकमात्र सही रास्ता है। इसलिए कि देखिए, योगासन छोड़ के आप लोग को बहुत रास्ता है। कोई जिम में जाके एक्सरसाइज कर रहा है, कोई रनिंग कर रहा है, कोई वॉकिंग कर रहा है, कोई फ्री एंड एक्सरसाइज कर रहा है, सब अलग अलग सिस्टम से कर रहा है, और सब अपना हेल्थ के लिए। तो जो लोग हेल्थ के बारे में जानता है, समझता है, वो जरूर कुछ ना कुछ कर ही लेगा। और जो लोग अपना हेल्थ को, अपना बॉडी को अच्छा नहीं पाता है, वो लोग
वो खाना पीना सोना रेस्ट करना मस्ती से, और विशाल वो डिजीज लेके पूरा सारा शरीर में डिजीज लेके बैठा हुआ है, दुनिया भर का डिजीज। एक 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 बोलने से एक शुगर है और डायबिटीज, शुगर है, प्रेशर है, हार्ट का प्रॉब्लम है, किडनी का प्रॉब्लम, लिवर का, दुनिया भर का प्रॉब्लम। जो लोग कुछ भी नहीं करते हैं, अपना खाना पीना सोना बैठना जिंदगी वैसे कट रहा है, वो लोग मेडिसिन के ऊपर में जी के लास्ट मोमेंट में ऊपर चला जाता है। लेकिन योगा का सबको जो लाभ करता है, जो अच्छा तरीका से जानता है योगा करने से कुछ फल मिलेगा, तो वो लोग धीरे धीरे आ जाता है योगासन में। योगासन से सचमुच क्या डेवलप होता है कि नहीं होता है, हेल्थ को अच्छा रखना सीखता है कि नहीं सीखता है, जो क्या है वो एक बार इंटरेस्ट मिल गया तो जिंदगी भर छोड़ता ही नहीं। पहले अपना शरीर को अच्छा पाना पड़ेगा। ये शरीर है टेम्पल, ये शरीर है मंदिर, इसके अंदर में सब कुछ है, इसको पहले आप उसको सब अच्छा पाना पड़ेगा। मेरा शरीर को अच्छा पाना कि शरीर कैसे ठीक रहे, आप लाइफ को कैसे लॉन्जेविटी कर सकता है, विदाउट एनी डिजीज आप कैसे जी सकता है। होल डे, जैसे मैं बोला था अभी, होल डे हम काम कर रहे हैं, कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, सुबह 5 बजे से लेके रात ये 10 बजे पकड़ लीजिए, कुछ ना कुछ काम कर रहा है। बीच में थोड़ा थोड़ा टाइम मिलता है खाना पीना का, रेस्ट, थोड़ा सा आधा घंटा रेस्ट कर लिए, उसका बाद बिल्कुल मेरा समय नहीं आता, मेरा अच्छा लगता है, होल डे काम करता है। कोई तो हमको पूछता है जी आपको इतना एनर्जी कहाँ से मिलता है, आप कैसे ऐसे काम करते हैं। मैंने एनर्जी मिलता है योगासन प्राणायाम से। आप रेगुलर योगासन प्राणायाम करो, आपको लॉट्स ऑफ एनर्जी मिलेगा, लॉट्स ऑफ स्ट्रेंथ मिलेगा, आपको माइंड ठीक रहेगा, उसको सही दिशा से आप चलना सीखेगा। इसलिए तो योगा करता है। अभी योगा का साथ साथ बहुत कुछ आता है, खाली योगा करने से नहीं होता है। योगा का पार्ट पार्ट हम लोग अगर कर लेगा, जैसे कि पकड़ लीजिए योगा, कुछ लोग योगा करता है मन को अच्छा लगता है, शरीर को अच्छा लगता है इसलिए करता है। कोई लोग योगा करता है जे नहीं ऐसे बस हमको अच्छा लग रहा है बस हम कुछ करता है। और कुछ लोग करता है ना योगा से हमको बहुत बेनिफिट मिल रहा है, हमको हेल्थ अच्छा लगता है इसलिए हम योगा करते हैं। और कुछ लोग करता है, कुछ अभी न्यू जनरेशन का जो स्टूडेंट है वो लोग योगा करता है, वो स्पॉटेंटली ले लेता है, उसको लेके अच्छा से वो योगा के बारे में कुछ जानकारी हो चाहे नहीं हो, लेकिन रेगुलर प्रैक्टिस करके वो अपना कंपटीशन में जाता है। जितना भी बेसिक नॉलेज हो, बेसिक नॉलेज के करके भी इतना टफ टफ आसन करके अभी ये कंपटीशन में फाइट कर रहा है, स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, नेशनल इंटरनेशनल लेवल फाइट कर रहा है। वो ही अलग से है। और कुछ लोग है ने हमारा बार डिजीज है, हमारा शरीर में कुछ प्रॉब्लम हो गया, किसी का पकड़ लीजिए प्रेशर का प्रॉब्लम, किसी का शुगर का प्रॉब्लम, किसी का हार्ट ब्रेन माइग्रेन का प्रॉब्लम, स्पोनाइटिस बैकएक का प्रॉब्लम, बहुत सारे प्रॉब्लम होता है। वो ठीक करने के लिए कुछ कोच का पास चला जाता है, कुछ टीचर का पास चला जाता है योगासन सीखने, कुछ सेंटर में चला जाता है ये उसको ठीक करने के लिए। जैसे कि चला जाने का बाद कुछ दिन प्रैक्टिस करने का पहले दिक्कत होता है, कुछ दिन प्रैक्टिस करने का बाद जैसे उनको आराम मिलते शुरू किया, साथ ही साथ वो कंटिन्यू कर देता है, तो समझ जाता है ये योगा नहीं करने से, रेगुलर अगर प्रैक्टिस नहीं करेगा मैं जिंदगी बर्बाद हो जाऊंगा, मेरा लाइफ का लॉन्जेविटी बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। इसलिए वो धीरे धीरे उसको योगासन को ले लेता है। तो अभी क्या होता है, योगासन का जो पार्ट है, जैसे कि अभी जैसे कि ध्यान आसन, शस्त्रासन ऐसे बोला ना, अभी कुछ आदमी लोग करता है नहीं हम लोग इतना योगा नहीं करेगा, थोड़ा प्राणायाम करेगा, बस मेडिटेशन करेगा या बस ध्यान करेगा। और भी हो सकता है वो फिजिकली मेंटली फिजिकली उसका अच्छा है इसलिए वो कर रहे हैं। और हेल्थ के लिए जैसे कि मैंने बोला है, आदमी लोग डिजीज होने का बाद जो योगासन करेगा ये नहीं होना चाहिए, पहले से शुरुआत से योगासन करना चाहिए। जो योगासन का जो बेसिक नॉलेज है वो बेसिक नॉलेज में पहले ध्यान देना चाहिए और क्रिटिकल आसन में नहीं जाना चाहिए। स्टूडेंट लोग है जो लोग कर रहा है, छोटे छोटे स्टूडेंट लोग जो कर रहे हैं, पहले बेसिक नॉलेज, हर टीचर को रिक्वेस्ट करूंगा पहले बेसिक नॉलेज दीजिए। बेसिक नॉलेज देने के बाद उनको ग्रेजुअली उसको जैसे कि शरीर अनुसार मतलब उसका बॉडी कितना फ्लेक्सिबल है, कितना टफ है, वो देख के उसको सिखाइए, जबरदस्त को मत सिखाइए, नहीं तो योगा फॉर हेल्थ उसको कभी भी नहीं होगा। उसको डेवलप करने के लिए चाहिए धीरे धीरे उनको सिखाते जाइए
तब उसको एक सिस्टम में आ जाएगा। तब उनका बारे में उसको समझाइए। खाली योगासन खाली वो कंपटीशन कर रहे नहीं, अपने हेल्थ का बारे में भी है। तो क्या क्या होता है, कौन आसन करने से क्या बेनिफिट मिलता है, उसको समझाना चाहिए। ये पहले से फ्रॉम द बिगिनिंग अगर हर आदमी को, हर स्टूडेंट को अच्छा तरीका से समझा दे, तब जाके क्या होता है, स्टूडेंट लोग खुद जानकारी हो जाएगा, नहीं योगा सीखने से ये बेनिफिट होता है। योगा करके भी स्टूडेंट लोग, आम आदमी लोग, कोई ऑफिस करता है, कोई जॉब करता है, कुछ भी करता है, करके उसको समय निकलना चाहिए। निकलने के बाद कोई भी एक टाइम योगासन कर सकते हैं। जैसे कि अलग सर ने, अलग कुमार दास ने बोला है, सारा दिन में कोई भी टाइम, खाली खाना पीने का टाइम छोड़ के कोई भी टाइम कर सकता है, लेकिन बेस्ट टाइम है मॉर्निंग टाइम। अब मॉर्निंग टाइम ब्रह्म मुहूर्त बोलता है, सब सुबह 3 बजे का बाद, या 3 बजे तो कोई नहीं उठता है, 4 बजे के बाद, 4 से 6 बजे के अंदर अगर रेगुलर आप योगासन, प्राणायाम, सूर्य नमस्कार रेगुलर प्रैक्टिस करता है तो ऑटोमेटिकली आपका हेल्थ पूरा चेंज हो जाएगा। अभी क्या करना है, ये हेल्थ को आपको ठीक रखने के लिए आप कम से कम सुबह में उठने की कोशिश कीजिएगा। जैसे कि हम लोग के शरीर में ऑक्सीजन चाहिए 80%, लेकिन हम लोग मिलता है 20 से 30%। हम लोग हर टाइम घर में रहता है, मैं घर में रहता है, ऑफिस में जॉब करता है, या जहाँ भी जो भी ऑफिस करता है, जो भी करता है उसमें ऑक्सीजन का परसेंटेज कम होता है। तो उसका वजह से क्या होता है, शरीर में जितना ऑर्गन्स है, ये ऑर्गन्स को सटीक तरीका से चलने के लिए ऑर्गन्स को चाहिए मैक्सिमम ऑक्सीजन चाहिए, या भरपूर ऑक्सीजन चाहिए। तो ऑक्सीजन का उसके लिए क्या करना चाहिए, आप कम से कम सुबह उठिए। सुबह उठ के आपको फ्रेश एयर मिलता है, तो फ्रेश एयर मिलता है तब जाके आपको फुलफिल होगा जो आपको 70-80% आपको कितना बॉडी में ऑक्सीजन चाहिए। तो वो अगर सुबह उठ के आपका सुबह का काम खत्म करके आप चाहे वॉकिंग कीजिए, चाहे थोड़ा वॉकिंग, जिसका वॉकिंग अच्छा नहीं लगता है, जॉगिंग वॉकिंग अच्छा नहीं लगता है, वो सुबह उठ के थोड़ा स्ट्रेचिंग करके आपको कुछ आसन सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करके उसके साथ सूर्य नमस्कार भी जोड़ दीजिए, उसके बाद प्राणायाम भी कीजिए, तो भरपूर ऑक्सीजन मिलता है। भरपूर ऑक्सीजन मिलने का साथ साथ क्या होता है, शरीर को ऑटोमेटिकली आपको चेंज से कराता है। आपका शरीर में कुछ डिजीज, ऐसे डिजीज है वो मालूम नहीं चलता है, 10 to 15 20% तक मालूम नहीं चलता है, बीच में कभी डिस्टर्ब होता है, लेकिन जब 50% 40 to 50% आ जाता है, तब हम लोग डॉक्टर के पास जाता है। उसका पहले इस शरीर को ठीक रखने के लिए ये सुबह उठ के जैसे कि हल्का सा आपको गर्म पानी पीजिए। कोई नींबू पानी पीता है, कोई उसको हनी डाल के उसको भी पीता है गर्म पानी में, ये बॉडी को क्लीन करने के लिए, हेल्थ को अच्छा रखने के लिए। उसका बाद आप थोड़ा सा हल्का सा वार्म अप कर लीजिए, बेसिक जो फ्रंट बेंडिंग, बैक बेंडिंग, साइड बेंडिंग, हैंड रोलिंग, नेक रोलिंग, जो आपको शरीर का जो करना है, ये नेक से लेकर शुरू करके ये फ्रोजन का से लेकर शोल्डर जॉइंट शुरू करके, उसके बाद फिंगर्स का, उसके बाद रिस्ट का, जो जितना भी है, कमर का, नी जॉइंट्स का, सब एक्सरसाइज थोड़ा थोड़ा करके कर लीजिए। करने के बाद बॉडी जब फ्री हो जाता है, एक्चुअली हम लोग रात में जो सो जाता है ना, शरीर जरो हो जाता है, इसको सुबह उठ के आप धीरे धीरे, बहुत जल्दबाजी मत कीजिएगा, धीरे धीरे सुबह उठ के ये हल्का सा थोड़ा बेसिक एक्सरसाइज कर लीजिए, लूजनिंग एक्सरसाइज कर लीजिए। करने के बाद बॉडी जब फ्री हो जाता है, उसका बाद आप देखिए सूर्य नमस्कार टीवी देख के मत करिए, वो कोई टीचर का सामने में जाके आप सूर्य नमस्कार प्रैक्टिस करिए। हर स्टेप में आपको ब्रीदिंग का सिस्टम है, वो ब्रीदिंग फॉलो अप करके, जैसे कि थोड़ा दिन पहले विनय भट्टाचार्य सुंदर दिखाया था, और भी कोई एक्सपर्ट ने दिखाया था, सूर्य नमस्कार दिखाया था, सूर्य नमस्कार उसको धीरे धीरे करके प्रैक्टिस करने का कोशिश कीजिए। हर स्टेप में आपको ब्रीदिंग का प्रोसेस है, और इस सिस्टम से जाइए। सूर्य नमस्कार ये लूजनिंग एक्सरसाइज करके आप थोड़ा सूर्य नमस्कार कर लीजिए। सूर्य नमस्कार में लॉट्स ऑफ बेनिफिट्स मिलता है, जैसे कि हार्ट, लंग्स, लिवर, स्टमक, किडनी, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, सबको हेल्दी हो जाता है सूर्य नमस्कार करने से। सूर्य नमस्कार करने से आपको शरीर को जो जठरता है, वो जठरता कमती हो जाता है, शरीर फ्लेक्सिबिलिटी, शरीर का फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाता है, और क्या होता है, हार्ट लंग्स का कैपेसिटी बढ़ जाता है,
स्ट्रेंथ स्टेमिना बढ़ जाता है। और जो लोग लेडीज है और लेडीज लोग अगर रेगुलर सूर्य नमस्कार करता है तो उनको भी बहुत सारा बेनिफिट मिलता है। जो रेगुलर सूर्य नमस्कार 20 to 30 टाइम्स 30 सेट्स अगर कर देता तो जिसका पॉसिबल नहीं है 10 सेट कीजिए। आप 10 सेट करते करते ग्रेजुअली ग्रेजुअली 15 सेट 20 सेट करके जाइए। टाइम समय ज़्यादा नहीं लगता है। रेगुलर अगर सूर्य नमस्कार करता है तो शरीर इतना खुल जाएगा, देखिएगा शरीर का चेहरा चेंज हो जाएगा। और जैसे कि हम लोग रात में जैसे कि सोने का समय मस्किटो नेट लगाता है प्रोटेक्शन देने के लिए, शरीर को मच्छर ना काटे। इस तरीका से अगर हम लोग को शरीर का भी प्रोटेक्शन लेता है तो जो हम लोग आगामी दिन में क्या होता है रोग प्रतिरोधक हो जाएगा, मतलब कोई भी डिजीज हम लोग को अटैक करने नहीं चाहिएगा। इसलिए सुबह में उठ के पहले आपको ये सब काम कर लीजिए। सुबह का टाइम बेस्ट टाइम, सुबह का टाइम बेस्ट टाइम है। उसके बाद आप थोड़ा सूर्य नमस्कार करें। या अभी एज अनुसारी आपका एज छोटा बड़ा जैसे 10 ईयर्स 20 ईयर्स 30 ईयर्स 40 ईयर्स 50 ईयर्स, देखिए कुछ कुछ आदमी का उस समय भी एक तो चीज़ देख के करना चाहिए, किसका प्रेशर नॉर्मल है, किसका प्रेशर ज़्यादा है, किसका हार्ट का प्रॉब्लम है, किसका और सारा दूसरा दूसरा हार्निया सर्निया का प्रॉब्लम है। वो सब समझ के अब तब आपको टीचर से पूछ लीजिए, कोच से पूछ लीजिए। पूछने के बाद आप सूर्य नमस्कार प्रैक्टिस करें। और सूर्य नमस्कार जैसे बेनिफिट भी है, आप गलत तरीका से करने से आपको डिसएडवांटेज भी मिलेगा। इसलिए वो सुंदर से आप लोग सूर्य नमस्कार प्रैक्टिस करें। तो प्रैक्टिस करने के बाद उसका टाइम आप आ जाइए थोड़ा ये आसन योगासन, कौन कौन योगासन करने से आपको बेनिफिट ज़्यादा मिलता है। देखिए स्टमक के लिए पहले जैसे कि पवन मुक्तासन, अर्धकुर्मासन, मंडूकासन मुद्रा, जुगो मुद्रा, ये सब आप करिए स्टमक के लिए, स्टमक ठीक रखने के लिए। उसमें क्या होता है हम लोग जितना जबरा खाता है ना उसको अगर क्लीन नहीं करेगा, सफा नहीं करेगा, पेट में आपको ऑटोमेटिकली गैस आ सकता है, या लीवर का प्रॉब्लम हो सकता है, गैस्ट्रिक एसिडिटी का प्रॉब्लम हो सकता है। आज का दिन में ज़्यादा होता है इसलिए कि हम लोग खाना पीना में ज़्यादा से ज़्यादा पेस्टिसाइड मिलता है। कोई भी खाने का चीज़, सब्जी बोलिए आप, ग्रीन वेजिटेबल बोलिए, मीट बोलिए, फिश बोलिए, या अदर्स जो भी है बोलिए, हर चीज़ में कुछ ना कुछ मिलावट होता है। इसलिए बहुत सावधानी से उसको खाइए, बॉयल करके खाइए अच्छा तरीका से। खाने के बाद रेगुलर योगासन प्राणायाम करिए, देखिए आपको हेल्थ अच्छा रहेगा। उसका बाद आ गया आपको स्पाइन के लिए, बैक के लिए कुछ आसन कीजिए, जैसे कि भुजंगासन होता है, शलभासन होता है, धनुरासन होता है, उष्ट्रासन होता है, सुप्त वर्जासन होता है, अर्धचंद्रासन होता है, चक्रासन होता है। देख देख के आपको जितना पॉसिबिलिटी होता है, जितना शरीर आपको देता है उतना कीजिए। आप कोई बोल दे आप चक्रासन कीजिए, लेकिन आपका चक्रासन आता ही नहीं, आपका बॉडी स्टीफ है, तो उसका बारे में आपका क्या करना चाहिए। उसका बारे में आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए, भुजंगासन कीजिए, शलभासन कीजिए, धनुरासन कीजिए। आपको बैक का जो प्रॉब्लम होता है फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ा आ जाएगा। जरूरत नहीं है आपको चक्रासन करने का। आपको जब फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगा, जो जो ज़्यादा से ज़्यादा आदमी लोग का L4 L5 ये कभी स्लिप डिस्क भी हो जाता है, वो देख देख के करना चाहिए। जब आपको फ्लेक्सिबिलिटी आ जाता है तब आपको शरीर के देखिए इतना मज़ा मिलेगा, जे शरीर आपको पूरा तंदुरुस्ती रहेगा। ये आ गया पेट का, अभी फ्लेक्सिबिलिटी, बैक का फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। उस तरीक़ा से फ्रंट बेंडिंग भी चाहिए। फ्रंट बेंडिंग की जैसे किसी का कमर टाइट हो, किसी का स्पाइन टाइट हो, किसी का लेग्स टाइट हो, हामस्ट्रिंग मसल्स टाइट है, काफ मसल्स टाइट है, उसके लिए क्या करना चाहिए, आप धीरे धीरे कोशिश कीजिएगा। जैसे कि पश्चिमोत्तानासन, जानुशीर आसन, अर्धकुर्मासन, ये सब करने का कोशिश कीजिएगा। पदहस्त आसन, ये सब करने का कोशिश कीजिएगा। और स्पाइन के लिए ट्विस्टिंग पोस्चर, पहले पहले आप वक्रासन कीजिएगा, उसके बाद अर्धमर्शंदासन कीजिएगा। पहले ही अर्धमर्शंदासन में मत जाइए, इसलिए कि जिसको फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा है वो कर सकता है, अर्धमर्शंदासन डायरेक्टली कर सकता है। लेकिन जिसको फ्लेक्सिबिलिटी कम है वो वक्रासन से शुरू करे। जैसे कि एक पैर लंबा करके, हम अभी दिखा नहीं सकता है, एक पैर लंबा करके बैठ के दूसरा पैर क्रॉस करके
वो हाथ को लेके जाके ऑटोमेटिकली अर्धमुष्टासन जैसे वक्रासन करके प्रैक्टिस करने से जब फ्लेक्सिबिलिटी आ जाता है उसके बाद आप अर्धमुष्टासन प्रैक्टिस कीजिए, तो उसका क्या होता है, स्पाइन भी ठीक रहता है। अभी के आदमी लोग का ज़्यादा से ज़्यादा ये स्पॉन्डिलाइटिस का प्रॉब्लम होता है, किस लिए, मोबाइल यूज़ करता है आधा सो के बिस्तरा में या सिट डाउन करके ऐसे मोबाइल यूज़ करता है, कोई कंप्यूटर ज़्यादा से ज़्यादा कंप्यूटर ऑफिस में कंप्यूटर का काम करता है, या टीचर्स लोग का नेक डाउन करके या खुद लिखना होता है, कॉपी चेक करना होता है, सब लोग का ज़्यादा से ज़्यादा स्पॉन्डिलाइटिस का प्रॉब्लम होता है। उसके लिए मैंने जैसे बोला है, नेक से शुरू कीजिए सुबह में एक्सरसाइज। नेक से शुरू करने से नेक रोटेशन धीरे धीरे, हेड अप एंड डाउन, साइड साइड, सब चारों तरफ से रोटेशन करके नेक को पहले फ्लेक्सिबल कर लीजिए। उसके बाद धीरे धीरे ये नेक रोटेशन, शोल्डर रोटेशन आ गया, ये शोल्डर रोटेशन, फिर नेक के प्रेशर देके आप ऊर्ध्व मुंडकासन का जैसे ऐसे प्रेस देके उसको कीजिए, फिर हैंड्स अप करके इससे स्ट्रेचिंग कीजिए, इसको धीरे धीरे हाथ को घुमाइए। बैठ के भी कर सकता है, जो स्टैंडिंग पोजीशन में दिक्कत होता है आपको बैठ के, जैसे कि मैंने कंटिन्यू बैठा रहता है, बीच बीच में हाथ उठा के थोड़ा स्ट्रेचिंग कर देता है, आपको जैसे स्टैंडिंग में तारासन का स्ट्रेचिंग होता है उस तरीका से आप बैठ के भी ये स्ट्रेचिंग करने से क्या होता है, आपको ऐसे वाला स्ट्रेचिंग कर देने से क्या होता है, स्पाइन का जो टाइट हो जाता है ना उसको थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी आ जाता है, उससे भी आपको शोल्डर को अच्छा रख सकते हैं। तो अभी क्या होता है, ये योगासन का हेल्थ को अच्छा रखने के लिए आपको योगासन चाहिए, विदाउट योगासन आपको नहीं होगा, इसलिए कि बहुत सारा तरीका है, बहुत सारा तरीका है, ये तरीका में सब में जाके लाभ नहीं है, अल्टीमेटली आप घूम फिर के योगासन में आने पड़ेगा। तो योगासन का सही ढंग से करना चाहिए, सही सिस्टम से करना चाहिए, सही डिसिप्लिन से करना चाहिए, नहीं तो आपको क्या रिजल्ट, अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। आपको शरीर में ऐसे कुछ प्रॉब्लम है, आप उल्टा पल्टा आसन कर दिया, जैसे कि पकड़ लीजिए हाई प्रेशर है, हाई प्रेशर में सर्वांगासन शीर्षासन नहीं करना चाहिए, लेकिन आपको वो टीवी में देखा है, मोबाइल में देखा है, कहाँ में देखा है, अभी तो ऐसे ही करता है, कुछ स्टूडेंट लोग ऐसे ही करता है, कुछ आदमी लोग भी ऐसे ही करता है, उसमें देखा है हम भी कर देता है, उसको जाके हाई प्रेशर और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। हाँ ऐसे, और जैसे कि स्पाइन के लिए जैसे कुछ आसन नहीं करना चाहिए, जैसे हलासन, सर्वांगासन, इस स्पाइन का प्रॉब्लम है वो लोग नहीं करना चाहिए, वो लोग जबरदस्ती करके कर देने से उसको और भी प्रॉब्लम आ सकता है। और जैसे कि हार्ट लंग्स के लिए जैसे कुछ प्रॉब्लम है, तो ये लोग का भी उसे देख के कुछ आसन है, ये सब नहीं करना चाहिए। तो फॉलो अप कीजिए, आप टीचर का बात फॉलो अप कीजिए, कोच का बात फॉलो अप कीजिए, आपका जो गुरु है गुरु का बात सुनिए, जो गुरु जी जैसे सिखाता है, कोच जैसे सिखाता है, टीचर जैसे सिखाता है, उनको फॉलो अप कीजिए। खुद आप देख के कोशिश मत कीजिएगा, नहीं तो आपको जो हेल्थ है वो हेल्थ कहाँ डेवलप करेगा, कहाँ अच्छा करेगा, उसको नेगेटिविटी ज़्यादा आ जाएगा। एक बार आपको नेगेटिविटी आ जाएगा, आप नहीं जान के किया, आपको पॉजिटिविटी आने के लिए आपको बहुत समस्या हो जाएगा, बहुत दिक्कत हो जाएगा, आपको मन में लगेगा कि नहीं ये करने से हमको ये प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन कोई अच्छा टीचर का पास जाके इसलिए प्रैक्टिस करना। तो हेल्थ को डेवलप करना चाहिए। देखिए अभी कोई वॉकिंग करते हैं, कोई रनिंग करता है, कोई जॉगिंग करता है, फुटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल जो भी करते हैं, सब लोग अल्टीमेटली योगासन प्रैक्टिस करते हैं। विदाउट योगा आपको फुल फ्लेजेड हेल्थ को डेवलप कभी भी करने नहीं सकता। ओके, उसका साथ अभी साथ योगा के साथ खाली योगासन करेगा ना, उसका साथ और भी कुछ है, जैसे कि हम लोग का शॉर्ट कर्म है, अष्टांग, जो उसके साथ और भी जुड़ेगा। ये हम लोग का सब जितना भी एक्सपर्ट है सब अष्टांग योगा के बारे में लॉट्स ऑफ आप लोग को दे दिया, नॉलेज दे दिया, अष्टांग के बारे में आज जो बोलने की जरूरत ही नहीं है। जम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, यम का 5 भाग है, चौहिंग, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। नियम का भी 5 भाग है, शौच, संतोष, तप, श्रद्धा, ईश्वर प्रणिधान। इसमें काल में हम लोग को जयंत सर ने बहुत सुंदर से आप लोग को डिस्क्रिप्शन कर दिया, योग दर्शन, पतंजलि योग दर्शन, और थोड़ा कुछ अभी जैसे कि पलक बाबू ने बोल दिया, परसों में भी जैसे शुभेंद्र बोला था, सुंदर डिस्क्रिप्शन कर दिया। अष्टांग बारे में आप लोग का लॉट्स ऑफ नॉलेज हो गया, इसका बारे में और आप लोग को नॉलेज नहीं देगा, लेकिन ये नॉलेज रख के जो बिगिनर्स लोग जो आता था उन लोग को थोड़ा
अष्टांग योगा का बारे में थोड़ा सा बोलना जरूरी होता है, सिखाना का जरूरी होता है। इसलिए वो तो भी फॉलो अप करना है। ये तब जाके योगासन सक्सेस होगा बाद में। आपको हेल्थ का बारे में जब आप सक्सेस चाहिए ना, वो फॉलो अप 10 टू, जैसे कि जम नियम का 5 भाग है ना, वो आपको फॉलो अप करना है। अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, सौ संतोष, तप, श्रद्धा, ईश्वर प्रणिधान, ये 10 टू चीज आपको खूब से फॉलो अप करना है। और क्या फॉलो अप करना है? आपको खाना पीना, खाली जो कर लिया उसके बाद आप घर में जाके या बाहर में जाके जो तो खा लिया, दुनिया भर के जाबरा, पृथ्वी के जितना जाबरा बोलते हैं इसको, खा दिया। ये देखिए रास्ता में आपको कुछ फास्ट फूड मिलेगा, तो क्या ऑयल से बनाता है, कप का ऑयल से बना रहा है, क्या चीज़ देखे बना रहा है, क्या पानी से उसको बना रहा है, आपको कुछ मालूम नहीं है। अब देखा है बहुत स्वादिष्ट बना रहा है, इतना मसाला वसला देके उसमें मैंने खाने के दिल किया, अब खा दिया, उसका पीछे दिन देखिए, उस दिन ही देखिए आधा रात में आपको तो पेट का कोई डिस्टर्ब हो गया, या पीछे दिन आपको पेट खराब हो गया। आप तो समझ में नहीं आएगा किस लिए ऐसा हुआ। अगर अच्छा से दिमाग से लगाएगा तो ओ कल तो खा दिया था, स्पाइसी खाना खा दिया था रास्ता में, इसलिए ऐसा हो गया। इसलिए हम लोग का जो पंचेंद्रिय में जो है, चोक, कान, नाक, दांत, जिह्वा और स्किन, ये जिह्वा को कंट्रोल करने के लिए बहुत जरूरी होता है। पंचेंद्रिय में जिह्वा को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। ये पहले जिह्वा को कंट्रोल करना चाहिए। अगर आप जिह्वा को कंट्रोल किया तब जाके ये आप बहुत बहुत डिजीज से आप बच जाएगा, जैसे गैस, गैस्ट्रिक, एसिडिटी, लिवर का प्रॉब्लम, किडनी का प्रॉब्लम, शुगर का प्रॉब्लम, सबसे बच जाएगा। खाइए, देख के खाइए, खाना माना नहीं है, आप देख के खाइए, जहाँ तहाँ से मत खाइए, जो तो मत खाइए, अच्छा स्वादिष्ट खाना खाइए, अपने घर में बनाइए, घर में खाइए। जो अच्छा वाला होटल हो वो तो भी तो आपको मालूम नहीं है, आप अंदर में जाके तो थोड़ी ना देखते हैं ये होटल, बाहर से बहुत चकचक करता है, अंदर में जाके क्या होता है नहीं होता है आप लोग को तो मालूम नहीं है। इसलिए देख के खाना पीना करना चाहिए। खाना में ऐसा आता है सात्विक आहार, राजस्विक आहार, तामसिक आहार, ये 3 आहार में आप ध्यान दीजिए। जो फ्रेश आप बना के खा रहा है, अब आज का दिन का खाना आज ही खा रहा है वो कल में नहीं खाएगा, वह सात्विक आहार है। दाल भात, सिंपल दाल भात, सब्जी, बॉयल जो भी खाइए, इसमें मीट उट मत लेके आइए, फिश उट मत ले, फिश ले आने सकता है, मीट, एग, अंडा उंडा ये सब मत लेके आइए। सात्विक आहार या ये सब छोड़ के निरामिष आहार, एकदम खाने का इतना अच्छा लगता है। दाल भात सब्जी आप खाइए, दिल खुश करके खाइए, पेट भर्ती करके खाइए, स्टोमक का कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा, शरीर आपको बहुत अच्छा रहेगा, तंदुरुस्त रहेगा। इसका साथ शरीर मन का भी संबंध है। जो रेगुलर आपको ये सात्विक आहार ग्रहण करता है, जो योगासन करता है, उसको माइंड देखिए बहुत अच्छा रहता है, हेल्थ भी अच्छा रहता है, माइंड भी अच्छा रहता है, बात करने का तरीका भी सुंदर होता है, वो कभी भी गर्म नहीं होता है, कभी भी गुस्सा नहीं होता है, कंट्रोल कर लेता है, एडजस्ट कर लेता है। ऐसे मैंने बहुत आदमी को देखा है, जो लोग एक्चुअली प्रॉपर जोगी है, वो लोग जो लोग मीट वगैरह, फिश वगैरह कुछ भी नहीं खाता है, जो सात्विक आहार ग्रहण करता है, जो रेगुलर आसन प्राणायाम करता है, उसको उनको हेल्थ देखिए, उनको उसको चेहरा पाती देखिए, उसको फेस देखिए, अलग से एक देखने से उसको जैसे कि भक्ति आता है और रेस्पेक्ट करने का दिल करता है। ऐसे होना चाहिए। एक मिनट। तो हम लोग अपना शरीर को ठीक रखने के लिए सात्विक आहार का बहुत जरूरी है। फ्रेश, मैंने जैसे बोला ग्रीन वेजिटेबल्स में दी पेस्टिसाइड ज़्यादा देता है, ये मेरे को सब लोग को मालूम है। उसको आन के अच्छा से धुलाई करके या गर्म पानी से वॉश करके उसको बनाइए, खाइए फ्रेश ग्रीन वेजिटेबल्स। उसको सेकेंड टाइम नहीं खाना है। इवन कि आप लोग का जो भात होता है ना, राइस, जब राइस में आपको बनाता है, पकड़ लीजिए, आज में राइस बना दिया, थोड़ा ज़्यादा बना दिया, वो आपको रह गया, फैलने का दिल नहीं है, राइस नहीं फेंकना चाहिए, काल खा देगा। तो उसमें क्या होता है, काल खाने के लिए आप जो रख देता है ना, उसको एक फंगस बन जाता है,
एक कीड़ा मकड़ा मतलब हो जाता है, हम लोग का मालूम नहीं है, ये नहीं देखता है। ये खाने से उससे भी आपको पेट का क्षति होता है, हानिकारक होता है। इसलिए आप अगर खाता है तो उसको पानी देकर फ्रिज में अच्छा तरीके से रख दीजिए, रख के उसके बाद खाइए। इससे सूखा सूखा मत रखिए। राइस से भी प्रॉब्लम होता है, पानी से भी प्रॉब्लम होता है, सब्जी से भी प्रॉब्लम होता है, बाकी मीट फिश एग से भी प्रॉब्लम होता है। बहुत सावधानी से आपको शरीर का, ये शरीर को जत्न करने के लिए, अच्छा रखने के लिए, केयर करने के लिए बहुत अच्छा तरीका से आपको फॉलो अप करना है, नहीं तो प्रॉब्लम आ सकता है। ठीक है। अभी तामसिक आहार जैसे कि आज में खाना बनाया, कल खा दिया, फ्रिज में डाल दिया, ये कल खाएगा, थोड़ा गर्म करके कल दोपहर को खाया, पर रात में भी खाया, ये होता है तामसिक आहार। इसमें क्या होता है, आदमी लोग का मेंटेलिटी तो बहुत खराब हो जाता है। ये जो लोग ऐसे करके खाना खाता है ना, उसको मेंटेलिटी चोर डकात ऐसे कुछ हो जाता है ना, खराब काम करने का वो लोग को दिल करता है। ऑटोमेटिकली चेंज এটা आता है, मेंटली फिजिकली मेंटली उन लोग को चेंज এটা आता है। देखिए वो लोग अच्छा अच्छा नहीं समझ, अच्छा दिमाग में नहीं आएगा, खराब चीज उसको दिमाग में आएगा। जो तामसिक आहार रेगुलर ग्रहण करता है उससे शरीर का भी हानिकारक होता है, मन शरीर मन का भी चेंज हो जाता है। अच्छा अच्छा कभी भी नहीं सोचेगा, हर टाइम खराब ही सोचेगा। और राजस्विक आहार जो स्पाइसी खाना खाता है, जहाँ तहाँ अच्छा से एकदम मस्ती से राजस्विक आहार खाता है, सोचता है कि बहुत बहुत टेस्टी है, वो खाया वो तो खाया। राजस्विक आहार से क्या होता है, शरीर का हर ऑर्गेन्स है उसको बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। जैसे कि मैंने बोला लीवर किडनी पेनक्रियास गोल ब्लैडर जितना भी ऑर्गेन्स है और प्रॉब्लम आ सकता है राजस्विक खाना से। जैसे कि वहीं से तेल मसला ससला जितना भी है वो ज़्यादा डाल देता है, जितना नहीं खाना चाहिए वो उससे भी ज़्यादा परिमाण वो उसमें आज राजस्विक खाना में आ जाता है। हर टाइम अगर राजस्विक खाना खाएगा तो आप ऑटोमेटिकली लिवर पर प्रॉब्लम आ जाएगा, उसके साथ साथ पेनक्रियास का प्रॉब्लम आएगा, उसके साथ साथ गॉल ब्लैडर किडनी का भी प्रॉब्लम आएगा। इसलिए जितना सके कोशिश कीजिएगा, खाने का तो दिल करेगा ही, खाना जब है खाने का दिल करेगा ही, कोशिश कीजिएगा आप नहीं खाने के लिए। और खूब नहीं सीखने से कभी कभार खा दीजिए, देखें ना रेगुलर मत खाइए। राजस्विक खाना में जितना भी खाएगा स्वाद के लिए, जिब्बा बोला ना जरा टंग, इसको अगर कंट्रोल करता है तो ठीक है, अगर कंट्रोल नहीं करता तो आप भोगेगा, बाद में जाके भोगेगा। हम लोग क्या होता है पहले जोश में चलते रहता है, 40 साल तक 40-45 साल तक हम लोग जोश में चलता है, उसके बाद शुरू हो जाता है एक एक अंग प्रत्यंग शुरू हो जाता है। आज मैं उठूँ, काल में तुमुक, परसों में तुमुक, डॉक्टर के पास जाके विजिट देते देते पैसा, मेडिसिन खाते खाते हालत खराब हो जाता है। इसलिए हम लोग को अभी से ये शपथ लेना चाहिए, या ये मन में वो बांध लेना चाहिए जी, रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज योगासन प्राणायाम करेगा, उससे मेरे हेल्थ को कैसे करके डेवलप कर रख सकता है, लाइफ को लॉन्जिविटी कर सकता है, उसको ध्यान में रखना चाहिए। और पंचेंद्रिय में जैसे कि हम जिब्बा का बारे में बोला, टंग का बारे में बोला है, फिर उसे आप लोग सब जानते हैं, नाक को स्मेल आने से ऑटोमेटिकली अच्छा बुरा खराब इसमें स्मेल आता है, तो स्मेल में भी खाने का दिल करेगा। कान कान में देखिए आप लोग खराब भी सुनता है, अच्छा भी सुनता है, तो वो कान को उसको उसको भी कंट्रोल करना चाहिए। आप लोग खराब चीज़ मत लीजिएगा, अच्छा चीज़ लीजिएगा। अभी ऑनलाइन में जैसे योगासन क्लास चल रहा है, कीप फिट ग्रुप आप लोग को इतना सुंदर अपॉर्चुनिटी दिया, जितना भी आदमी आया ये इसमें भाग लिया, जितना भी जो कुछ सुन रहा है, ये अच्छा चीज़ दे रहा है आप लोग को, खराब चीज़ नहीं दे रहा है। जो जितना भी एक्सपर्ट है, सब जितना जानकारी जितना अच्छा चीज़ दे रहा है आप लोग का, वो अच्छा चीज़ दे रहा है, वो कान में अच्छा चीज़ ही जाएगा। यहाँ में तो खराब चीज़ नहीं दे रहा है। तो बाहर में ऐसे बात करने से खराब चीज़ तो बहुत आता है, जल्दी जल्दी पकड़ लेता है, अच्छा चीज़ नहीं आता है। तो कोशिश कीजिएगा, जो लोग रेगुलर योगासन प्राणायाम प्रैक्टिस करते हैं और जॉब ध्यान कर लेते हैं, उसको ऑटोमेटिकली अच्छा चीज़ एक्सेप्ट करने के लिए शरीर में ऑटोमेटिकली आ जाता है। उसके बाद आंखें देखिए, आंखें तो बहुत खराब है। आप अच्छा चीज़ बाद में लेता है, गलत चीज़ आगे लेता है। स्टूडेंट लोग को देखिए, बच्चा लोग को देखिए, अच्छा चीज़ बाद में लेता है, गलत चीज़ को आगे लेता है। उसको थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए ऑटोमेटिकली। और ये सब चीज़ करने से क्या होता है,
इसका शरीर के ऊपर में असर पड़ता है। इसको ये कंट्रोल करने से 5 इंद्रियों का आप कंट्रोल कर लिया तो शरीर भी ऑटोमेटिकली बहुत सारा कंट्रोल हो जाएगा। जैसे खाना का बारे में बोला है, स्मेल और खाना, जिब्बा तो दे दिया भगवान, तो उसको टेस्टी खाना मिल जाने से सब लोग जबरदस्ती खा देता है, जैसे जैसे खा देता है। कुछ शादी वगैरह जाने से वो नहीं देखता है कौन सा खाना अच्छा है कौन सा बुरा है, वो पहले से मीट दे के शुरू करते हैं, मीट दे के शुरू करता है, मीट फिश जो जो है स्पाइसी खाना, बाकी सब नहीं पकड़ता है। खा के जो लोग मैंने खाने मांगता है वो लोग खा देता है, खा के नहीं सोचता जी कल में मेरा हालत क्या होगा। तो खाना का बारे में आप लोग देख के खाइए, देख के खाइए और हर चीज़ जांचाई करके लीजिए। मार्केट में जब जाता है देख लीजिए, देख के उसका बाद जो खाने से शरीर में आपको अच्छा रहता है और वो आप खाइए। जैसे कि खाली योगासन करने से नहीं होता है, योगासन के साथ ये संपर्क है, ये खाना पीना के भी संपर्क है। और जितना सके आप लोग अवॉइड कीजिएगा ये, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स, अल्कोहल, ये सब स्मोक, ये सब चीज़ अवॉइड कीजिएगा। इसमें कुछ भी है नहीं। जो लोग लेता है, थोड़ा गर्मी लगा तो ठंडा पानी पी लेता है, थोड़ा गर्मी लगा तो कोल्ड ड्रिंक्स पी लेता है, पूरा ठंडी लगा तो दूसरा चीज़ पी लेता है, लेकिन उसको क्या जाके शरीर में हर अंग प्रत्यंग में इफेक्ट कर रहा है ना, उसको मालूम नहीं है, बाद में थोड़ा मालूम होगा। इसलिए गर्म से आने के बाद तुरंत आपको ठंडा पानी मत पीजिएगा, लगने से नॉर्मल वाटर पीजिए। मैंने अभी जैसे बैठा है, थोड़ा देर पहले हम आया बाहर से, आने के बाद हम आधा ग्लास गर्म पानी पिया, हवा लगा, उसके बाद गर्म पानी पिया। पीने से क्या होता है, आपको ये थ्रोट्स सब अच्छा रहता है, कफ होने का चांसेस नहीं होता है, खांसी होने का चांसेस नहीं होता है, शरीर को तंदुरुस्त रखता है। इसलिए थोड़ा हल्का सा गर्म पानी पीजिए। गर्म में गर्म पानी पी सकता है, आप शरीर का केयर करने के लिए आपको गर्म पानी चाहिए। और लगने से आप फ्लास्क में रख दीजिए, हर टाइम तो गर्म पानी करने का उसको बॉईल करने के लिए बहुत प्रॉब्लम होता है, फ्लास्क में रख दीजिए, बीच बीच में आप थोड़ा थोड़ा करके गर्म पानी पीते जाइए, कोई हानिकारक नहीं है, अच्छा है। इसलिए आपको ठंडा पानी से ज़्यादा नॉर्मल पानी पीजिए, नहीं तो थोड़ा सा वार्म वाटर पीजिए, उसमें शरीर को एकदम अच्छा लगता है और क्लीन कर देता है। सुबह उठ के अगर 2 ग्लास पी देगा तो आपको शरीर को क्लीन कर देता है। इसलिए योगासन करिए, योगासन का साथ साथ मतलब और कुछ चीज़ जानकारी भी लेना चाहिए और मानना भी चाहिए। आप अगर नहीं मानेगा, खाली योगासन करेगा, जो तू खा देगा, इनडिसिप्लिन से चलेगा, तो शरीर आपको वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। शरीर को देखिए, आपको शरीर क्या चीज़ एक्सेप्ट करता है। यहाँ में सारा भारत का क्लाइमेटिक कंडीशन अलग अलग से है। हम लोग आसाम में रहता है, अभी हमारे इधर में हम लोग कलकत्ता से कोई आदमी इधर में आने से, जैसे कि कंपटीशन किया था, नेशनल कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया था, कलकत्ता से इधर में आया, वो लोग आते समय तो ये एक सिंपल ड्रेस लेके आ गया। आने के बाद जब बारिश हुआ इतना ठंडा, बोलते हैं इधर में तो बहुत ठंडा है, इसमें क्लाइमेट ऐसा है, कितना सुंदर क्लाइमेट। आप इधर का क्लाइमेट कोई भी अगर दिग्बई या आसाम का तरफ इस तरफ अगर कोई तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट में घूमने के लिए आ जाए, आप जाने का दिल नहीं करेगा, इतना बढ़िया क्लाइमेट है। बारिश होता है, थोड़ा ज़्यादा गर्मी होने से बारिश हो जाता है, क्लाइमेट ही ठंडा होता है। हम लोग यहाँ से अगर कलकत्ता जाए, गुवाहाटी जाए या दिल्ली मुंबई जाए, हम लोग के लिए प्रॉब्लम हो जाता है, गर्मी ज़्यादा मिलता है। लेकिन उधर से जो लोग आता है वो लोग आके इधर में ठंडा महसूस करेगा, लेकिन वो लोग को बहुत अच्छा लगेगा। एक क्लाइमेट का वजह से भी आपको शरीर को प्रॉब्लम आ सकता है। कौन सा क्लाइमेट के, जैसे कि जहाँ ठंडा ठंडा ज़्यादा होता है ना, वो मैंने बोला थोड़ा वार्म वाटर खाइए। और गर्म प्लेस में जो सूखा हुआ गर्म पानी, उसमें पानी ज़्यादा चाहिए, दिन में कम से कम 2 लीटर 3 लीटर पानी पीना ही चाहिए। जिस शरीर का पानी बहुत चाहिए, इसलिए शरीर में आपको बारे बारे उसको पीना ही चाहिए, पानी का बहुत ज़रूरी होता है। तो क्लाइमेट वाइज आपको देखिए, जहाँ जैसे होता है, जैसे खाना पीना होता है, पानी का जैसे ज़रूरत होता है, जो भी करिए, लेकिन उसके साथ रेगुलर कुछ एक्सरसाइज, योगासन, प्राणायाम ऑब्वियसली कीजिएगा। और नहीं करने से क्या होता है, आप जो अगर नहीं करेगा तो आपको हेल्थ एक तो समझ जाके 40-45 ईयर्स के बाद देखिएगा, अगर प्रेशर बढ़ गया, आप इनडिसिप्लिन हो जाएगा तो आपका प्रेशर बढ़ गया, आपका शुगर का प्रॉब्लम आ सकता है, आपका लीवर का प्रॉब्लम आ सकता है, गैस्ट्राइटिस ऐसे प्रॉब्लम आ सकता है। उसको सॉल्व करने के लिए
और तरीका क्या है, आप तो दौड़ेगा, वो डॉक्टर के पास जाएगा, मेडिसिन खाएगा, जरूरत नहीं है। आप पहले से आपको शरीर में ध्यान दीजिए, उसको अच्छा तरीका से आप केयर लीजिए। डेली सुबह उठिए, 4 बजे नहीं सकता किसी का, 4:30 बजे 5 बजे उठिए। मैं हर रोज 5 बजे हम उठ जाता है, मेरे सुबह सुबह क्लास रहता है। और क्लास में सुबह का क्लाइमेट इतना, मौसम इतना सुंदर रहता है, योगासन प्राणायाम करके इतना अच्छा लगता है, वो सब चेंजेस एकटू आ जाता है। सुबह उठ के हल्का सा गर्म पानी पीजिए, गर्म पानी पी के आपको जो प्राकृतिक आयुर्वेदिक है करके कर लीजिए। उसके बाद थोड़ा देर बैठ के थोड़ा शरीर को गर्म कर लीजिए। जो अगर वॉकिंग में जाता है, वॉकिंग करके आके थोड़ा रिलैक्स कर लीजिए। उसके बाद योगासन प्राणायाम अभ्यास करिए, आधा घंटा 45 मिनट, जिसका जितना समय भी होता है। उसके बाद तुरंत आप लोग ब्रेकफास्ट मत लीजिएगा, कम से कम हाफ एन आवर रेस्ट करके उसके बाद आप लोग ब्रेकफास्ट लीजिएगा। और जॉगिंग वगैरह करके आके आप थोड़ा ये नींबू का जूस भी ले सकता है, वो भी कोल्ड वाटर नहीं, हल्का सा वार्म वाटर होने से अच्छा है, नहीं तो नॉर्मल वाटर में आप ये ले सकता है, जूस ले सकता है। थोड़ा बैठ के उसके बाद आसन और प्राणायाम कीजिए। प्राणायाम में बहुत सारा प्राणायाम है, वो जो प्राणायाम आपका जरूरी होता है, जैसे कि भस्त्रिका प्राणायाम, अनुलोम विलोम, नाड़ी शुद्धि प्राणायाम, शीतली शीतकारी प्राणायाम, उज्जयी प्राणायाम, ये सब में जो आपका जरूरी होता है वो करिए। भस्त्रिका के साथ आप करिए कपालभाति। कपालभाति करने के बाद आप जाइए अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम करके आप जो अभी जितना भी वॉकिंग किया या जॉगिंग किया या लूजनिंग एक्सरसाइज किया, आसन किया, प्राणायाम करने का साथ साथ क्या होता है, धीरे 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 शरीर को कूल डाउन हो जाता है। आप जितना भी शरीर को गर्म जैसे हुआ, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका प्राणायाम से थोड़ा हीट होता है, कपालभाति कीजिए। कपालभाति करने के बाद, कपालभाति क्रिया से कपालभाति करने के बाद उसके बाद आइए अनुलोम विलोम प्राणायाम करने के बाद थोड़ा सा आप भ्रामरी प्राणायाम कर लीजिए, थोड़ा सा ओमकार चैंटिंग कर लीजिए। उसके बाद थोड़ा 2-4 मिनट साइलेंस में बजे, 5 मिनट साइलेंस, शवासन कर लीजिए 5 मिनट, पूरा बॉडी कूल डाउन हो जाता है। तुरंत उसके बाद मत नहाइए, कम से कम 15 मिनट 20 मिनट रेस्ट देकर उसके बाद नहाइए। नहा के वो ड्रेस फ्रेश अप होते होते आपको समय हो जाता है, उसके बाद आप जाके ब्रेकफास्ट कर सकता है। और इवनिंग टाइम कम से कम 4 आवर्स आपको गैप देना चाहिए। 4 आवर्स गैप देके आप जब आसन प्राणायाम करेगा, तब इवनिंग टाइम आपको बॉडी बहुत फ्री हो जाता है। उस टाइम में आसन प्राणायाम करके भी आपको शरीर को बहुत अच्छा लगेगा। तो रात में देखिए, कोई कोई आदमी लोग है रात में वॉकिंग करते हैं, 8 बजे 9 बजे वॉकिंग करते हैं। वो इतना इतना रात में वॉकिंग करने के बाद, वो आने का बाद कम से कम हाफ एन आवर रेस्ट चाहिए। और रात आप खाना कितना बजे खाइएगा, कम से कम 9 से 9:30 के अंदर डिनर खत्म कर देना चाहिए। मेरा ख्याल से 9 बजे के अंदर डिनर खत्म कर देना चाहिए। खत्म करने के बाद 1-1.5 घंटा के बाद आप सो जाइए, 10-10:30 के अंदर सो जाइए, तब जाके सुबह आप उठना चाहिए। ये डिसिप्लिन से चलने से तब कहता है शरीर आपको अच्छा रहेगा, मन अच्छा रहेगा। अभी देखिए, शरीर मन अगर अच्छा नहीं रहेगा, आपको एनी टाइम में काम का वजह से हो, चाहे घर का कुछ संसार का हाल अवस्था देखे ऐसे कुछ वजह का हो, एक्साइटेड हो ज़्यादा हो जाने से आपको प्रेशर तो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। आपको माइंड को ठीक रखने के लिए, शरीर को ठीक रखने के लिए योगासन चाहिए, प्राणायाम चाहिए। उसके साथ आप ओमकार चैंटिंग कंटिन्यू, सुबह शाम 2 टाइम ओमकार चैंटिंग। ओमकार चैंटिंग में बहुत पावर है, बहुत पावर है। जो रेगुलर आप सुबह शाम ओमकार चिंतन कीजिए, को प्रार्थना कीजिए। कुछ अच्छा जब समय मिलता है आपको, ये शरीर मन को अच्छा रखने के लिए कुछ अच्छा वाला आप किताब बुक्स आप परचेज करके उसको स्टडी कीजिए। या रेगुलर हो सकता है तो भागवत गीता से आप 2 चैप्टर, आप 1 चैप्टर 2 पेज 3 पेज आप पढ़ लीजिए भागवत गीता से, या रामायण से, या महाभारत से, ऐसे बहुत कुछ है। आप डेली उसको भी, उससे भी शरीर मन अच्छा रहता है। योगासन का खाली योगासन करने से नहीं, उसका साथ रिलेटेड बहुत कुछ है। ये सब चीज आप लोग नहीं करने से अच्छा नहीं रहेगा। तो शरीर को अच्छा रखने के लिए योगासन तो चाहिए। और एक तो चीज बोला है, आजकल का जो स्टूडेंट लोग है, जो अच्छा एक समाज गढ़ने के लिए आपको, जो सुसंतान है उसको समाज के गढ़ने के लिए आप खुद अच्छा होना पड़ेगा। आपको शरीर को ठीक रखने पड़ेगा, मन को ठीक रखना पड़ेगा। आप अगर शरीर मन को ठीक रखेगा,
नेक्स्ट जनरेशन जो आता है उसको अगर सही तरीका से, सही वे से, सही ढंग से आपको समाज में उसको अच्छा एजुकेशन दो या अच्छा कुछ देने के लिए आप भी खुद को ठीक करना पड़ेगा। आप अगर खुद नहीं होगा तो आप इनडिसिप्लिन होगा तो आपको नेक्स्ट जनरेशन भी इनडिसिप्लिन हो जाएगा। अभी के समाज में देख लीजिए तो स्टूडेंट लोग कितना इनडिसिप्लिन हो गया। कोई मैंने मतलब वो अपना पढ़ाई तो करता है, लेकिन जब जो चीज़ चाहिए वो भी चाहिए। अब कंप्यूटर मोबाइल यूज़ करके ज़्यादा इनडिसिप्लिन हो गया। अब मोबाइल जैसे कि हर टाइम मोबाइल यूज़ करने का ज़रूरत नहीं होता है। मोबाइल से हम लोग का ये नर्वस सिस्टम का बहुत प्रॉब्लम आता है। ये सैटेलाइट कनेक्शन है, इसलिए एनी टाइम उसमें हाथ में रखने से, हाथ में देखता है, लड़की बोलिए चाहे स्टूडेंट बोलिए चाहे कोई भी आम आदमी बोलिए, एनी टाइम हाथ में मोबाइल रहता है। मोबाइल से क्या होता है, ये धीरे धीरे नर्व सब मतलब क्या कमजोरी हो जाता है। ये 40 45 50 ईयर्स के बाद देखिए हाथ साथ सब ये नर्व्स का प्रॉब्लम हो जाता है। बहुत लोग बोलते हैं ना मेरा नर्व्स का प्रॉब्लम है, नर्व्स का प्रॉब्लम। कहाँ से आता है? जो लोग ज़्यादा कंप्यूटर का वो इस्तेमाल करता है, जो लोग ज़्यादा लिखा लिखी का इस्तेमाल करता है, जो लोग ज़्यादा मोबाइल के यूज़ करता है, वो लोग क्या होता है, शरीर को या शोल्डर को या हैंड का मसल्स को लूजनिंग करने के लिए कोई भी एक्सरसाइज नहीं करता है। इसका वजह से उनका मसल्स, उनका टिश्यूज सब माने टाइट हो जाता है। उसका वजह से क्या होता है, स्पॉन्डिलोसिस भी हो सकता है, स्पाइन का प्रॉब्लम हो सकता है, जो नर्व्स का प्रॉब्लम भी हो सकता है। बहुत वजह है। इसलिए रेगुलर सुबह आप लोग योगासन कीजिए, प्राणायाम कीजिए। ये चीज़ ध्यान में रखिए, जे आप अगर डिसिप्लिन से चले, आपका नेक्स्ट जनरेशन भी डिसिप्लिन हो जाएगा। आप अगर डिसिप्लिन हो, नेक्स्ट जनरेशन भी आपको इनडिसिप्लिन होगा। आप समाज को लिए कुछ अच्छा काम कीजिए। हम लोग देखिए सब लोग मिलके ये किक फुट ग्रुप बोलिए, अमल बाबू बोलिए, पद्म सिंह राव बोलिए, बा आसाम का मेरा नाम बा ये डॉक्टर विनय भट्टाचार्य जी, या दूसरा दूसरा स्टेट का है, कुछ नागालैंड का है, मणिपुर का है, उड़ीसा का है, उसके बाद कर्नाटक का है, आंध्र प्रदेश का है। सब लोग मिलजुल के कोशिश कर रहे हैं सारा भारत में। और बाकी ये रास्ता देखा हम लोग का जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने ये यूनेस्को में ये हम लोग का जो 21 जून इंटरनेशनल योगा डे वो लेके आके और भी पॉपुलर कर दिया। उसका साथ बाबा रामदेव जी आके, पहले देखिए वो चीज़ चलता रहा। अभी सब लोग बाबा रामदेव का, कोई बोलता हम आस्था करता है, कोई बाबा बाबा रामदेव जी का योगासन करता है। ये सब तो पतंजलि का है, आदि गुरु शिव का है, पतंजलि का है। जो भी हो, कुछ ना कुछ अभी योगासन का डेवलप हो गया। पहले आदमी लोग को पता नहीं था, बहुत सारा गुरुजी था, लेकिन अभी देखिए ये ऑनलाइन का वजह से हो चाहे टीवी का माध्यम से हो, अभी आदमी लोग, भारतवर्ष का आदमी लोग योगासन करने लग गया निज हेल्थ को डेवलप करने के लिए। इसका बाद सारा विश्व में देखिए, सारा विश्व में मैक्सिमम कंट्री 200 का ऊपर में कंट्री वो योगासन रेगुलर प्रैक्टिस करता है। जहाँ में ऐसे कुछ कंट्रीज था योगासन का एक्सेप्ट नहीं करता रहा, वो भी अभी एक्सेप्ट करके योगासन शुरू कर दिया। क्या है, योगासन करने से शरीर मन को अच्छा लगता है, डिजीज से बच सकता है। इसको शरीर का हम लोग प्रोटेक्शन देना चाहिए योगासन का माध्यम से, प्राणायाम का माध्यम से, क्रियास का माध्यम से। क्रियास है क्लेंजिंग प्रोसेस। शरीर जैसे हम लोग ऊपर से जितना भी साबुन शैम्पू यूज़ करता है, जो भी अच्छा अच्छा चीज़ करता है, चीज़ यूज़ करता है, हम लोग क्लीजिंग प्रोसेस भी करना चाहिए। हमको शरीर को वॉश भी करना चाहिए। ये जितना भी खाना पीना जाबरा खाता है ना, उसको शरीर को बस बस धोती, नेति, नौली, सराटा, कपालभाति, इसका जरिए से शरीर का हम लोग, आप लोग सब लोग जानते हैं, सब एक्सपर्ट है, सब गुरुजी है, लेकिन इसका बारे में डिस्क्रिप्शन इतना नहीं करना है, इतना जान लीजिए जी। हम लोग जितना सके शरीर को वीकली 1 डे हो या 15 डेज में हो, जैसे कि बमन धोती कर लिया, वस्त्र धोती नहीं, जरूरत नहीं है, दंड धोती कर लिया। उसके बाद ये नैति क्रिया कर लिया, नैति का जल नीति है, सूत्र नीति है। सूत्र नीति भी आप कोच का सामने में करिए, गुरु का सामने करिए, टीचर्स का सामने में करिए, जल नीति हो जाता है। जल नीति प्रॉब्लम नहीं है। आपको जो पॉट है, पॉट में आपको हल्का सा गर्म पानी लेके आप इसमें नाक को, दोनों नाक को आप वॉश कर लीजिए। उसमें जगह जिसका नाक में ज़्यादा म्यूकस का प्रॉब्लम है, सर्दी का प्रॉब्लम है,
जो खून निकलता है, तेज निकलता है, उसको आप वो मास्टर्ड ऑयल भी डाल सकता है, घी भी डाल सकता है, डाल के उसको नेति क्रिया कीजिए। स्लीपी हो जाने के बाद तो जितना म्यूकस का प्रॉब्लम है, जितना जाम्स है, वो सफा हो जाता है। हम गारंटी है, मैंने एक 2-4 स्टूडेंट हम अच्छा कर दिया है, जो नाक में एनी टाइम उसको येलो कलर का टोपला रहता है, सर्दी का प्रभाव। गार्जियन ने बोला सर अपना आपका पास लेके आया, आप कुछ भी कर दीजिए। तो मेरा स्टूडेंट था, उसको मैंने योगासन, प्राणायाम और नेति क्रिया किया था, जल नेति करने के बाद वो जब वो सब म्यूकस जाम जितना भी था जब हट गया, तो हटने के बाद तो नसल प्रोसेस एकदम क्लियर हो गया। उसमें पहले पहले हमको वार्म वाटर से कोशिश किया, उसमें घी डाल के, गाय का घी डाल के भी कोशिश किया, तेल दे के भी कोशिश किया, उसको पहले सफा नहीं होता रहा। ये सब कर करके देखा है, उसको धीरे धीरे नाक एकदम पूरा क्लीन हो गया, पूरा नाक सफा। वो जब भी जहाँ भी मिलता हमको हमसे बात करता है, साधु जी कर लिया। ऐसे बहुत सारा स्टूडेंट है, बहुत सारा प्रॉब्लम था, ये योगासन का माध्यम से, क्रियास का माध्यम से उन लोग को अच्छा कर दिया है। हम इतने एक्सपर्ट नहीं है, हम एनएस कोच किया, ट्रेनिंग किया, योगासन का बारे में ये सब नॉलेज लिया, लेकिन योगा थेरापिस्ट नहीं है। लेकिन रेगुलर प्रैक्टिस करते करते, कराते कराते आप मोटा मोटी नॉलेज हो गया, जो हम लोग ये आसन, ये डिजीज के लिए ये आसन दे सकता है, प्राणायाम दे सकता है, क्रियास दे सकता है, मुद्रा दे सकता है। जो आदमी लोग को समाज के लिए कुछ करना है, हम जितना भी मेरा नॉलेज है, मैं कोशिश करता हूँ पेशेंट लोग को कुछ ऐसा, शुगर का पेशेंट अभी ज़्यादा है, प्रेशर का प्रॉब्लम है, स्पॉन्डिलाइटिस का प्रॉब्लम है, बैक का प्रॉब्लम है, ये योगासन करा के जितना भी सकता है। उसका बाद साथ में हम थोड़ा वक्त एक गुरुजी से, हिमाद्री शेखर पुरकास्तो, आसाम का उत्तर पूर्वांचल का जो हेड है, उनसे थोड़ा ये एक्यूप्रेशर थेरापी सीखा था। और जितना भी नॉलेज है एक्यूप्रेशर थेरापी देके बहुत आदमी लोग को तुरंत, जैसे कि घुटने का दर्द, स्पॉन्डिलाइटिस का प्रॉब्लम, ये सब तरह तरह करके हम अच्छा कर दिया, और कंटिन्यू अभी वो लोग छोड़ते ही नहीं हमको। ऐसे तो आप लोग खुद कर सकते हैं निजी हेल्थ को डेवलप करने के लिए। योगासन, प्राणायाम, क्रियास, मुद्रास, ये एक्यूप्रेशर थेरापी तो अभी दिखाने का समस्या है, अभी टाइम भी बहुत हो गया, फिर भी जितना भी सके हम आप लोग का साथ शेयर किया है। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा, सुबह उठने का कोशिश कीजिएगा, डिसिप्लिन से चलने का शुरू कीजिएगा, वक्त पर पंक्चुअलिटी, डिसिप्लिन हम लोग को चाहिए। जैसे कि समय दिया है, समय पर आप जो कोई मीटिंग हो, चाहे ऑफिस हो, चाहे स्कूल हो, चाहे कोई बिजनेस हो, समय पर जाने के लिए कोशिश कीजिएगा, पंक्चुअलिटी मेंटेन करने का कोशिश कीजिएगा। और अच्छा तरीके से प्रॉपर टाइम में आप खाना पीना खाइए। खाना पीना प्रॉपर टाइम में होना चाहिए। आपको 1 बजे का खाना अगर 4 बजे खाए, रात को 9 बजे का खाना आपको 11-12 बजे खाए, तो इनडिसिप्लिन हो गया। तो होल डे में आप शेड्यूल बनाइए, इतना टाइम में ब्रेकफास्ट करना है, इतना लंच करना है, डिनर करना है, वो डिसिप्लिन से चलिए। खाना पीना, चलना, सुबह उठना, जोगिक एक्सरसाइज करना, जोगिक आसन प्राणायाम करना, अगर आप डिसिप्लिन से चलेगा तो योगासन से आपको लाभ होगा। योगा फॉर हेल्थ ऐसे होता है, अब ऐसे नहीं होगा। आप अगर योगासन वो कर देगा जो, तो इनडिसिप्लिन चलेगा, तो आप हेल्थ को आप डेवलप कभी भी करना नहीं चाहिएगा। आपको हेल्थ डेवलप होता है, साथ में माइंड भी डेवलप होता है। ये इसमें तो बोला है योगासन में, जैसे जम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, लास्ट है समाधि। उसमें जाने के लिए हम लोग का क्षमता नहीं है, लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं। आप अगर अच्छा ढंग से चले, आप होल लाइफ कम से कम 100 साल आप सुंदर से रह सकता है विदाउट एनी डिजीज। और अगर इनडिसिप्लिन से चलेगा, 50 ईयर्स के बाद आपका लाइफ खत्म हो जाएगा। आपको जो बैकग्राउंड है उनको तकलीफ होगा। इसलिए मैं सबसे निवेदन करता हूँ, आप लोग कम से कम ये योगासन का जो कर्मशाला हो रहा है, जो वर्कशॉप हो रहा है, इसमें बहुत सारा बेनिफिट आप लोग मिल रहा है। आप लोग रेगुलर उसको फॉलो अप कीजिए। 10 आदमी को बोलिए, आगामी में जो नवंबर में जो आ रहा है
इंटरनेशनल इंटरनेशनल जो 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 वर्कशॉप आ रहा है उसमें भाग लेने के लिए बहुत कुछ आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा हेल्थ का बारे में। तो ऐसे करके आप लोग आपको हेल्थ को अच्छा रखने के लिए कोशिश कीजिए। मेरा जितना भी है मैं आप लोग को नहीं सिखाया, जस्ट शेयरिंग किया कैसे आपको चलना है, खाना है, पीना है, सोना है, शेयरिंग किया। उसको आप थोड़ा फॉलो अप कीजिए। नेक्स्ट कभी चांस मिलने से, ये अपॉर्चुनिटी फिर में मिलने से और भी दूसरा बात करेगा। तो आज मैं इतना बोल के यहाँ में शेष तो नहीं होता है, ये बोलते बोलते खत्म ही नहीं होगा। ये योगासन का हेल्थ का बारे में बोलते बोलते खत्म ही नहीं होगा। सब कुछ थोड़ा थोड़ा करके बोल रहा है, इसलिए आप लोग का बहुत अच्छा नॉलेज मिल रहा है, बहुत अच्छा शेयर कर रहा है, सब लोग मिलकर शेयरिंग कर रहा है, आपका नॉलेज कर रहा है। उसको योगासन का आप लाइक कीजिए, आप लाभ कीजिए, आपको हेल्थ को अच्छा कीजिए, केयर लीजिए, देखिएगा आप 100 साल जिएगा। जय जोगा, जय जोगा। आपको जय शुभरात्रि, आपको हेल्थ अच्छा रहो, शुभकामना करता हूँ, मंगल प्रार्थना करता हूँ। और ये सामने में 22-23 तारीख से दुर्गा पूजा आ रहा है। दुर्गा पूजा के लिए सबको शुभकामना है। आपका हेल्थ अच्छा रहो, अच्छे से चलिए और कोशिश कीजिएगा सैनिटाइजर यूज कीजिएगा, मास्क लगाइएगा। जहाँ में पब्लिक गैदरिंग होता है कम से कम मास्क आप लोग यूज कीजिएगा, जैसे कि दूसरा का कोई डिजीज आपका शरीर में नहीं आए, इसलिए कम से कम मास्क यूज कीजिएगा। और जहाँ तहाँ से खाना मत खाइएगा, कोशिश कीजिएगा अपना खुद घर में बना के लीजिए, अच्छा तरीके से साफ जगह में जो होता है तो आप खाइए, नहीं तो मत खाइए। और साथ में एक वाटर बोतल जरूर रखिएगा। आपका वाटर बोतल, आपका खुद का पानी आप पीजिएगा, जहाँ तहाँ से पानी पी के मत खाइएगा, कोल्ड ड्रिंक्स मत खाइएगा। ये बस इतना ही आपको बोलना है। नमस्कार। असंख्य धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया सर जी आपको। इतना अच्छा आज का प्रोग्राम था कि आपने जो बताया, बच्चे में किसी ने भी कोई सवाल नहीं किया, मतलब सबको बहुत ही अच्छा लगा आज का क्लास और बहुत ही Thank you, इम्पोर्टेंट था आज का जो टॉपिक था। Thank you, नहीं भाई। मतलब जो भी आपने बताया, हर बच्चा अगर ये मान ले, बुरे के मामले 100% श्योर है कि हमारा पूरा बेस अच्छा हो जाएगा, मतलब स्वस्थ रहेगा। हमें किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, हम खुद अपने घर में खुद डॉक्टर बन सकते हैं। जो जो आपने बताया आज सबने अगर मान ले तो 100% हमारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा ऐसे ही। जय जोग। सर जी, अमल अमल सर जी, अमल सर जी, अमल दा, হ্যাঁ বলুন। আপনি কিছু বলবেন? হ্যালো, আপনি কিছু বলবেন? হ্যাঁ সুকুমার দা। হ্যাঁ বলুন বলুন বলুন। সুকুমার দা, খুব সুন্দর ক্লাস হয়েছে, খুব ভালো হয়েছে ক্লাস। না আমি তো খুব ব্যস্ততার মাঝে, আমি এত ব্যস্ত, তার মাঝে আমি কোনো প্রিপারেশন নেই। হ্যাঁ জাস্ট দেখছি তো আপনি অনেক কম্পিটিশন নিয়ে ব্যস্ত আছেন। অনেক কম্পিটিশন প্লাস এই যে ইন্টারন্যাশনাল ন্যাশনাল প্লাস দেখবো লোকালে, যেটা এগুলো নিয়ে ব্যস্ত, তার মাঝে এটাও করছি। যাই, এর ভালো মধ্যে লাগছে। যে আপনি সময় দিয়েছেন আমাদের, এটাই অনেক। না আমি যতটুকু পেরেছি শেয়ারিং করেছি, যতটুকু আমার জানা ছিল আমি করেছি। আগামী আর দিনে বিনয় যদি দা খুব হয়, সুন্দর পরিচালনা করেছেন, ধন্যবাদ। ধন্যবাদ দাদা, আজকে প্রথম এইভাবে আমি পাশে অনলাইনে থাকুন, ফার্স্ট টাইম। আপনারা এইভাবে পাশে থাকুন, তাহলেই হবে। আমরা তো আছি আপনার সাথে সবসময়। আছি আছি, আমরা দুজন একদম জানতাম দিয়ে আছে সঙ্গে। কালকে ঠিক আছে দাদা, আমরা দুজন একদম জানতাম দিয়ে আছি। একদম সহযোগিতা পেলে আমরা অনেক দূর এগিয়ে যাবো। কালকে বিনা বাবুকে কালকে আবার সবাই ভালো থাকবেন, শুভরাত্রি দাদা। বিনা বাবুকে কালকে আবার দিন শুভরাত্রি। হ্যাঁ পরিচালনা হ্যাঁ করবেন। হ্যাঁ। না না না